قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صدق الله العظيم. قادری املارے غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. آمین بولیے. قادری کر قادری رکھ. آمین. بلند آواز سے آمین کہیے. قادریہ میں اٹھا. آمین آمین. شاید آپ اس مصرے کا مطلب نہیں سمجھ پائے. آواز اس کی صحیح کیجیے. تقریر والی کیجیے. قادری کر قادری رکھ قادریہ میں اٹھا. نہیں مطلب سمجھ میں ایسا میں بتاتا ہوں. کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر. اور اتفاق سے لکھنے والے مصنف کا نام بھی غوث اعظم کے نام پر ہے. نام ہے سید عبد القادر اربلی. کیونکہ انہوں نے بھی شاعر صاحب کہاں چلے گئے. تسلیم بھائی نے بھی وہی شعر پڑھا تھا. اعلیٰ حضرت کے ایک مصرع لے کے دوسرا مصرع اپنا ملایا تھا. اور میں بھی یہ دعا کر رہا ہوں. کیوں؟ دراصل وجہ یہ ہے کہ ایک دن سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد سے کہیں چلے گئے. مریدین پریشان ہو گئے. پیر صاحب ملنے گئے, پیر صاحب ملنے گئے, پیر صاحب ملنے گئے. غوث پاک کے مریدین کا عالم یہ تھا تھوڑی دیر اگر غوث پاک نہیں ملتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے. لوگوں نے تلاش کیا. بس میں 1 سے سوا گھنٹہ تقریر کروں گا چونکہ میری فلائٹ ہے بھونیشور سے. اور یہ صابر بھائی کی کرامت ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں کہ بنگال میں پروگرام ہے. میں سمجھا کہ اڑیسہ میں ہے. میں ٹکٹ میں نے اڑیسہ کے حساب سے نکلوا لیا. اب میری عادت ہے نہیں کہ میں اپنی قوم کے پیسے کو برباد کروں. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھئی میرا ٹکٹ آپ کینسل کرائیے, میں 350 کلومیٹر کیوں جاؤں گا اور پیسے بھیجوائیے کمیٹی والوں سے. لیکن میری یہ عادت نہیں ہے. میں پیسے کی قیمت اور قدر سمجھتا ہوں کہ یہ قوم دن بھر محنت کر کے 50-50 روپے جمع کر کے چندہ کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ مجھے کوپریٹ کرنا ہے, میں آپ کو کوپریٹ کروں گا. کسی اور موقع پہ 2-2.5 گھنٹہ تقریر ہو جائے گی. آج سوا گھنٹہ ہی کافی ہے نا. سفر کا معاملہ ہے اور چونکہ میں رک بھی جاتا کچھ اور راستہ نکال دیا جاتا. لیکن کل چونکہ ایسے پیر کے یہاں مجھے جانا ہے کہ جس کا جلال بڑا مشہور ہے, جس کو حضور غیاث ملت کہتے ہیں. آج دن بھر میں کم سے کم 2 بار فون آ گیا. میں نے ایسی ہنسی مذاق میں مزاحیہ طور پر حضرت کو احساس نہ ہو محبت فرماتے ہیں
मैंने कहा हुजूर आना मुश्किल हो रहा है। नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कैसे आऊँ? बोले गाड़ी कीजिए दिल्ली से और कालपी शरीफ तक आइए और फिर उसके बाद घर जाइए, किराया मैं दूंगा। तो मोहब्बत है ना। तो अल्लाह का फजल है कि ऐसे सादात मुझसे मोहब्बत करते हैं कि मेरे लिए सादत की बात है। तो उधर भी मुझे जाना है, चूँकि मैं उन आकाओं की शानों को देखकर ज़बान आला हजरत में कहता हूँ कैसे आकाओं का बंदा हो रहा है। मुझे सुनने के लिए थोड़ा समझना पड़ता है। अगर आप कम वक्त में समझ जाएंगे तो कम वक्त में आपको मैटर दे जाऊंगा, और देर तक आप समझेंगे तो मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी, आपको समझते हुए वक्त ही पूरा हो जाएगा। हाँ, हजरत इसको उठा करके साइड कर दीजिए। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद से गायब हो गए। मुरीदीन तलाश कर रहे हैं, पीर साहब मिल नहीं रहे हैं। सैयद अब्दुल कादिर अरबली फरमाते हैं कि गैब से आवाज़ आई, मेरे अब्दुल कादिर को तलाश करना चाहते हो तो दरियाए दजला क्यों नहीं चले जाते। गौसे पाक के मुरीदीन जमा हुए, दरियाए दजला के करीब पहुंचे तो एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने देखा कि सैयदी गौसे पाक पानी के ऊपर चल रहे हैं। हमने कहा बद अकीदा को हुजूर की कुदरत समझ में नहीं आती, हमें तो अब्दुल कादिर की कुदरत भी समझ में आ रही है। कम वक्त में कुछ जुमले देकर जाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं असल में एक सर्जन नहीं हूं। क्या बोलते हो उसको जो ऑपरेशन करता है, सर्जन ही बोलते हैं ना। हाँ, तो बरेली का सर्जन आया है, कम वक्त में ऑपरेशन करके चला। अब जिसकी मर्जी चाहे वो सुधर जाए और जिसकी मर्जी चाहे वो बिगड़ा रहे, तौफीक अल्लाह देता है। हमारा काम सिर्फ समझाना है। समझ गए ना, हमारा खुदा भी एक है और हमारा मुस्तफ़ा भी एक है। समझ गए ना। इतना याद रखिएगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने अगर ये अकीदा रखा कि ईसा में खुदा आ गया है तो हमने उनको बख्शा नहीं, काफिर कहा है। और कुरान भी कहता है लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। हमें जिनके चेहरे देख ले तो दिन रात का खाना खत्म हो जाए, वो ये दावा करे कि हम खुदा भी है, रसूल भी है, पीर भी है। जालिमों, अभी बरेली वाले मरे नहीं है। शैतानों के चेहरों से नकाब हटा के इंसानों का चेहरा दिखाने वाले। याद रखिएगा, बरेली हमेशा ऐसे लोगों का बाइकाट करता है जो शरीयत का मजाक उड़ाते हैं। हम सिर्फ उन्हीं को मानते हैं जो मुस्तफ़ा वालों को मानते हैं, और जो मुस्तफ़ा को मानते हुए ये कहते हैं उन्हें जाना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अगर बोल सकते हैं तो बोल जाइए, वरना शिकवा नहीं है। बोलना आता हो तो बोलिए। गौर फरमाइएगा, सैयदी गौसे पाक के मुरीद फरमाते हैं देखा पानी के ऊपर मेरे पीर चल रहे हैं। और अगला जुमला बोल रहा हूं, अरबी का मतन सुनिएगा। मेरी आदत मिर्जा पैगंबर की तरह सिर्फ उर्दू में हदीसें बयान करना नहीं है। यूनुस अल गौहर शाही की तरह तसव्वुफ का नाम लेकर फरंच दाढ़ी रख के हमारी कौम को गुमराह करना नहीं है। याद रखिएगा, जिसकी दाढ़ी नहीं शरीयत उसको फासिक कहती है। और याद रखिएगा, फासिक अगर चांद की गवाही लेके आए, इस्लाम कहता है रिजेक्ट। तो जब इस्लाम ने उसकी गवाही को रिजेक्ट कर दिया है तो उसकी बयान करदा बातों को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए, 26वां पारा है, रब कहता अगर कोई फासिक तुम्हें कोई बात बताए तो उसकी बात को फौरन मानना मत, रिसर्च करना, छानबीन करना, तहकीक करना, तफ्तीश करना। इसलिए कि ये जब शरीयत के साथ धोखा कर रहा है तो तुम्हारे साथ भी धोखा कर सकता है। क्या बयान है, जिंदाबाद। बात समझ गए? बिल्कुल हक्कानियत। तो दीन सीखने के लिए अल्लाह रहम फरमाए। अब इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे पास कि तुम सोशल मीडिया पे फासिक और फरंचियों से दीन सीखते हो।
इतने बुरे दिन आ गए कि जो आज तक टोटियों का पानी भरता था मिर्जा पलम्बर, उससे दीन सीखते हो? दीन हमें बरेली वालों से सीखना है, इसलिए कि बरेली ने अल्हम्दुलिल्लाह दीन फैलाया भी है, दीन बचाया भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदाबाद। ये हमारा दावा है, जिसको दलील समझना है किसी और मौके पे आ जाओ, और अगर वक्त मिलेगा तो अब भी समझा दे। तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा जरा। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदीन परेशान दरियाए दजला के करीब पहुंचे। फरमाते हैं जैसे ही मैं गौसे पाक को देखता हूं तो क्या देखता हूं, पानी के ऊपर चल रहा है। अख्तर भाई अगला जुमला, अख्तरे नेक दुख्तर, गौर फरमाइएगा, जुमला बड़ा कीमती है। वल अस्मा को तुसल्लिमु अलैहि व तुक़ब्बिलु यदैहि व रिजलैहि। थोड़ा फ्री कीजिए, मेरी आवाज थोड़ी मुतासिर है। हाँ, माइक फ्री रखें, बिल्कुल अभी फ्री नहीं हुआ, आप अपनी तरह फ्री कर दीजिए इसको, जैसे आप फ्री हैं। गौर फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों गौसे आदम की शान समझिएगा। फरमाते हैं वो राबी वलस्मा को तुसल्लिमु अलैहि व तुक़ब्बिलु यदैहि व रिजलैहि। मछलियां पानी से निकल कर सलामी पेश कर रही है। सुभान अल्लाह। यार कादरियों, अगर ऐसे बोलना हो तो मैं किसी और जगह जाके तकरीर कर दूं, आपको सुनाने में फिर क्या फायदा है? तो जिसके टुकड़े खाते हो कम से कम उसके नाम पे मोहब्बत से बोलो तो सही। हमारी आदत है, हम जिसका खाते उसी के गुण गाते हैं। आप भी, आपकी आदत भी यही है ना? हाँ, तो सर हिलाते रहिएगा। सबका सर कैसे देखूंगा मैं? बोलो जरा मोहब्बत से। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदीन फरमाते, भैया अहले मिंबर थोड़ा सा करम कीजिए, आप भी बोल जाइए, चुप्पी तोड़ दीजिए। हाथों से नहीं बोला जाता, मेरे मुंह से बोला जाता है। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, जरा इधर भी तवज्जो, मोहब्बत के साथ जरा सुभान अल्लाह की सलाह बना दो, प्यार से बोलिए यार। आपकी आवाज तो मेरे कान तक नहीं आ रही है, कौम तो वहां से यहाँ तक आवाज पहुंचा दे रही है। बड़ी माजरत के साथ आप मेरे बिरादरी के लोग साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा? मोहब्बत से जरा ऊंची आवाज में, अल्लाह सलामत रखे। अब तवज्जो फरमाइएगा, सैयदी गौसे पाक के मुरीद फरमाते हैं वल अस्मा को तुसल्लिमु अलैहि व तुक़ब्बिलु यदैहि व रिजलैहि। मछलियां समंदर से निकलती है, कोई आपको सलाम पेश कर रही है, गौस ने हाथ को नीचे कर दिया है। वल अस्मा को तुसल्लिमु अलैहि व तुक़ब्बिलु यदैहि व रिजलैहि। कोई आपके पैरों को चूम के चली जाती है, कोई आपके हाथों को चूम के चली जाती है। सैयदी गौसे पाक के लिए गैब से मुसल्ला निकलता है, मुसल्ले के एक तरफ लिखा था अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़रून, और दूसरी तरफ लिखा था, क्या लिखा था? सलामुन अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। आप रहते हैं यहाँ बंगाल की सरजमीन पर, आपके इलाके में भी कुछ राफिजी कुत्ते होंगे जो शिया मिजाज रखने वाले हैं, उनको जाकर बता देना तुम्हें सिर्फ 12 इमाम नजर आते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी क्यों नजर नहीं आता? हम सबको मानते हैं जो भी नबी की आल में है, चाहे उल के अलावा अब्दुल कादिर जिलानी हो, उसके बाद आने वाला चाहे कालपी का सैयद हो, महरैरा का सैयद हो, मसौली का सैयद हो, बंगाल का सैयद हो, बिहार का सैयद हो। इसलिए कि हमने चेहरा देखकर फैसला नहीं किया है, मोहब्बत रसूल को देख करके फैसला किया है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, उनसे मुजाहिदे मिल्लत। मैं राफिजियों को कुत्ता बोल रहा हूँ, आपको कबूल है? जी। जिसको कबूल ना हो वो बता दे, और जिसको कबूल है वो सब बताए। कुत्ता बोल रहा हूँ, किसी को कोई एतराज नहीं है तो दलील भी सुन लीजिए। अगर कोई एतराज करे तो दलील दे देना, कहना हम तो हर नमाज में दुआ करते हैं, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। और ये दुआ भी मैं नहीं कर रहा हूं, बरेली का इमाम अहमद रजा खान कर रहा है। और कुछ दिनों पहले एक मौलवी तौसीफुर रहमान उठा था, एक मेराज रब्बानी उठा था। वो रब्बानी नहीं है, वो बयाबानी है, जंगली जिनको कहा जाता है।
समझ गए ना। उसने कहा कि देखो ये अपने आप को अब्दुल कादिर जिलानी का कुत्ता कहते हैं, ये फला का कुत्ता कहते हैं, फला का कुत्ता कहते हैं। हमने कहा तुझे क्या टेंशन है कुत्ता, हम कह रहे हैं तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हजरत कह रहे हैं ना, सग फारसी का लफ्ज, उर्दू में इसका माना कुत्ता ही तो होता है। तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हमने कहा गौसे आदम रदी अल्लाह, भाई इधर देख यार, तू उधर क्या देख रहा है, तू खास चीज है क्या? कैसे यार बेवकूफ किस्म के लोग हैं। तकरीर इधर कर रहा हूं, अगर वहां कोई हाथ लगा रहा तो उसको देख रहा है, ये कौन सी अक्लमंदी है? तवज्जो फरमाइए जरा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। डिस्टर्ब ना कीजिए, अगर देख नहीं है तो पीछे चले जाइए, सामने वालों को देखना कतान दुरुस्त नहीं है, जो सामने बैठे उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तवज्जो फरमाइएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हमने कहा आला हजरत अगर गौसे पाक की गुलामी का डोरा और पट्टा गले में डाल लेंगे मिलेगा क्या? आप भी जानते हैं, मैं आपको बड़े आसान अंदाज में समझा देता हूँ। आपकी गली कूची के अंदर किसी का कुत्ता नहीं, आवारा कुत्ता होता है। अगर आपके घर में आया, डंडा उठाया, मार के भगा दिया, दूसरी तरफ कुत्ता आया, मार करके भगा दिया। लेकिन एक कुत्ता है हमारे फाजिल भाई का, या एक कुत्ता है हमारे अब्दुल रहमान भाई का, अब उसके गले में पट्टा पड़ा है, मोहल्ले वाले जानते हैं ये फाजिल भाई का कुत्ता है। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, लोग उसको गोली नहीं मारते, लोग उसको डंडा नहीं मारते, फाजिल भाई से शिकायत करते हैं तुम्हारा कुत्ता बिगड़ गया है, इसका जाकर के इलाज करवाइए। ये दुनिया का मिजाज है। एक मिसाल देकर के जा रहा हूँ। आला हजरत कहते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हंसी तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हमने कहा तौसीफ और मेराज सुनो, अगर तुम्हें कुत्ता होना समझ में नहीं आता, पहली बात तो हमने कुत्ता बोला है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी शक्ल उसकी तरह है, हमारा हाथ उसकी तरह है। अरे भाई कुत्ता माना गुलाम है, कुत्ता माना खादिम है, ये अरबी जबान है, और अरबी जबान में एक लफ्ज के बहुत सारे माने आते हैं। बोले हम नहीं कहते, हमने कहा कहेगा कैसे, तेरा मनसब तो नबी ने बयान कर दिया है। हम गौसे आजम के दर के कुत्ते हैं, मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह के जुड़े हुए कुत्ते हैं, आला हजरत के दर के कुत्ते हैं। कहा फायदा क्या मिला? हमने कहा कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हम क़यामत के दिन हर गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। हमारा इमाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, हमारा इमाम इमाम आजम होगा, हमारा इमाम आला हजरत होगा, हमारा इमाम मुजाहिदे मिल्लत होगा। ए वहाबियों सुनो, तुम कुत्ता नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते, सरकार ने तुम्हारा मनसब जिक्र कर दिया है। अहलुल बिदाई खिलाफो अहलिन नार, सरकार फरमाते हैं ये जितने बिदाती है सब जहन्नमियों के कुत्ते हैं। तुम्हें जहन्नमियों का कुत्ता होना मुबारक हो, हमें गौसे पाक का कुत्ता होना मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम। जो है याद रखिएगा, बरेली शरीफ रहता हूँ। आप कहेंगे इसमें कौन सी बात है? भैया इधर देखो यार, भैया इसी में बात, कोई सवाल हो तो मुझसे करो, बात बिलाशुबा आप सवाल कर सकते हो। आपके अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुरान से हदीस से समझाऊंगा। वाह, अगर अब भी कुत्ता ना समझ में आया हो तो कुरान के 15वें पारे को बता दो, बता दो, करम कहो तो बता दो, करम नहीं बताओ? अरे बल्ला के बंदे बोल दे, बता दे, कुछ इल्म में फायदा हो जाएगा। हमने कहा हम तो इंसान हैं जो हकीकत में रियल में डॉग है, हकीकत में कुत्ता है। उस कुत्ते ने असहाबे कहफ की बारगाह से वफादारी की थी। वाह वाह वाह, सुभान। क्या ख्याल है? आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आना चाहिए, हालांकि मैं जानता हूं आपका मिजाज ही ऐसा है, हाँ, लेकिन थोड़ा मुस्कुराहट लाइए, कभी कभी मुस्कुराना भी चाहिए ताकि मेहमान के साथ मेहमान नवाजी में इजाफा हो जाए। हाँ, बिल्कुल बराबर में है आपके, संभालिएगा इनको। तवज्जो फरमाइए। हमने कहा असहाबे कहफ के दर से कुत्ता जुड़ा। असहाबे कहफ का नाम तो सुना होगा, अब मुझे ज्यादा तफसील न करना पड़े। असहाबे कहफ जा रहे थे बादशाह दिकियानूस के दर से गार की तरफ, पीछे से कुत्ता आ गया। जब कुत्ता आया तो असहाबे कहफ ने कहा चल तू हमारे साथ मत आ। बोले क्यों? बोले तेरी फितरत है भौंकना, तू भौंकेगा
हम तो खुद छुप छुपा कर जा रहे हैं, तू तो हमारा एड्रेस दे देगा। लेकिन कुर्बान जाइएगा, हंसना नहीं, पॉइंट दे रहा हूं, जहनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा। शहजाद कॉमेडी नहीं करता है, कुरान और हदीस की रोशनी में बात, उसकी रोशनी में बात कर रहा हूं। अहले इल्म की भी तवज्जो चाहूंगा। क्यों आखिर अभी थोड़ी थोड़ी देर में वीडियो से मना किया जा रहा था, वीडियो से कि मोबाइल जेब में रखो, मोबाइल जेब में रखो, क्यों? वजह समझिएगा जरा। असहाबे कहफ के करीब कुत्ता आया, असहाबे कहफ ने कहा चल यहाँ से हट जा जरा। अख्तर भाई बहुत जुमला दे रहा हूँ, कीमती जुमला, और ये सारी तकरीरों से हट करके गुफ्तगू है, तवज्जो फरमाइएगा, इसलिए कि ये 18 से लेकर 24 तारीख तक मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। हर तकरीर में ये मेरे साथ है, मैं इनके साथ हूँ, जरा गौर फरमाइएगा, इसलिए मैटर चेंज करना पड़ा है। अब जरा गौर करना। असहाबे कहफ का कुत्ता करीब आया, फरमाया चल हट, तेरी आदत है भौंकना, हम तो दिकियानूस से बच करके जा रहे हैं, तेरी फितरत है बोलना, जब तू बोलेगा तो वो दिकियानूस के वजीर, दिकियानूस के सिपाही हमें पकड़ लेंगे। कसम खुदा की, तफसीर में आता है अल्लाह ने उस कुत्ते को बोलने की ताकत अता फरमाई। कुत्ता कहने लगा जब तक तुमसे नहीं जुड़ा था अपनी फितरत के मुताबिक करता था, अब तुम्हारे कहने पर अपनी फितरत के खिलाफ करूंगा। मैंने कहा जब तक बरेली से मुरीद नहीं था वीडियो बनवाता था, और जब मुरीद हो गया तो पीर के रंग में रख जा, ताकि समाने को पता चल जाए ताजु शरीया का मुरीद जा रहा है। समझ गए? मुझ पे मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया का रंग चढ़ा है, इसलिए वीडियो से बचता हूं। रहा बेंगलोर और झांसी तो ना मेरी मर्जी से था ना मेरी मर्जी से है, शासन प्रशासन की तरफ से हम पर मजबूरी थी। और जाहिर सी बात है, एक तरफ ईमान अकीदा बचाना है और एक तरफ वो था, इस बुनियाद पर किया। लेकिन उसके अलावा कोई नहीं कह सकता कि शहजाद अपना वीडियो तबीयत से बनवाता। समझ गया? ये मेरे पीर का रंग है, और उस रंग को अल्लाह ताला मुझे कब्र तक ले जाने की तौफीक अता फरमाए। बात समझ गए ना? अब किसके कुत्ते हो जल्दी बताओ। गौसे पाक की, जल्दी बोलो। शर्म उसको आए जो जुर्म कर रहा हो। हम जुर्म नहीं कर रहे, हम तो कुरान और हदीस की रोशनी में अमल कर रहे हैं। तवज्जो है? सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंच गए, गैब से मुसल्ला निकला, लिखा क्या है? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सलामुन अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। एक तरफ लिखा है कुरान में, कुरान की आयत लिखी है जिसमें वलियों का तज़किरा है, दूसरी तरफ अहले बैत का नाम लिखा है, ताकि ज़माने को पता चल जाए ये अब्दुल कादिर जिलानी कोई आम नहीं है, वली है, वली वली। और दूसरी तरफ अहले बैत लिख करके इन राफ़ज़ियों के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा मार दिया गया। एक किताब है जिसका नाम है तफरीहुल खातिरिल फातिर। मैंने अभी तफरीहुल खातिर बोला है, ये तफरीहुल खातिर अलग है तो उसके लिखने वाले भी अलग है। एक है तफरीहुल खातिरिल फातिर फी तर्जमती सैयदी अश-शेख अब्दुल कादिर, लिखने वाले मुल्ला अली कारी फरमाते हैं। आपने कहा मैंने किताब क्यों लिखी? कहा मैंने किताब इसलिए लिखी है कि मेरे दौर के कुछ राफ़ज़ियों ने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गौसियत का इनकार कर उनकी सैयद होने का इनकार किया था। जरा जुमले पे गौर करना, गौसे पाक को सैयद नहीं माना। किसने नहीं माना? राफ़ज़ियों ने नहीं माना। मुल्ला अली कारी को पूरी किताब लिखना पड़ी। क्यों लिखना पड़ी? इसलिए कि ताकि ज़माने को पता कर जाए कि ये अब्दुल कादिर जिलानी भी सरकार की नस्ल पाक में है। हमने कहा यही वजह है, जब गौसे पाक पैदा हुए दूसरे दिन आपके वालिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में मदीने के ताजदार तशरीफ लाए, फरमाया हाजा इब्नु का व इब्नी ऐसा। अब सुनो सुनो अबू सालेह जंगी दो, अब्दुल कादिर तेरा ही बेटा नहीं, ये तो मेरा भी बेटा है। तो बरेली का इमाम कहने लगा तेरी सरकार में लाता है रसा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हमने कहा ये राफ़ज़ी कुत्ते अगर इनको जरूरत पड़ जाती है तो ये सैयदों की सियादत का इनकार कर देते हैं, ये शरीयत नहीं मानते, तबीयत मानते हैं। 12 इमामों का नाम लेकर ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं। अरे हमने कहा सुन, जो नबी से प्यार करता है वो नबी की आल से कयामत तक जितने भी आएंगे सबसे प्यार करेगा। इस मोहब्बत का तकाजा ये है। सैयदी गौसे पाक के सैयद होने का इनकार राफ़ज़ियों ने क्यों
क्यों किया था? वजह बताए, इसलिए किया था कि गौसे आदम की एक किताब है जिसका नाम आपने सुना होगा, सैयदी गौसे पाक की किताब गुनियतुत तालिबीन है। उस गुनियतुत तालिबीन में गौसे पाक ने फरमाया, अम्मा खिलाफतु मुआवियता फसहीहतुन साबिततुन बादा खलअ मौत अली बादा मौत अली इब्न अबी तालिब व खलअ हसनी खिलाफतहु इलैहि व तस्लीमिही इलैहि। हजरत सैयदी गौसे पाक ने लिखा था कि हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। इसका बाप इनको गाली क्यों देता है? दे रहा है गाली, इस पर हैरत नहीं, दे क्यों रहा है? अच्छा, दे क्यों रहा? इसका रीजन तलाश कीजिए। यही तो बरेली करता है, चोरों की बिल्कुल नस पकड़ता है। गौसे आजम के सैयद होने का इनकार किया क्यों? और आज भी उन राफजियों के फुजला ख्वार, उनके टुकड़ों पे पड़ने वाले कुछ ऐसे बदमजहब लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पे आकर कभी गुलजारे मिल्लत को गालियां देते हैं, कभी गयासे मिल्लत को गालियां देते हैं। हमने कहा सालिमो, तुम्हें अगर सैयदों से प्यार है तो ये तो असली सैयद है, इनका इनकार क्यों हो रहा है? क्या बात है? हमने का इनकार इसलिए हो रहा है कि ये उसी जमाने के राफजियों के तलवे चाटने वाली कौम है, उनके नजरियात को मानने वाली है। उन्होंने गौसे आदम के सैयद होने का इनकार किया था, ये आज के इन सैयदों का इनकार कर रहा है। इनकार क्यों किया? सुने ध्यान से। इनकार इसलिए किया कि गौसे पाक ने अपनी किताब में ये लिख दिया था कि अमीरे मुआविया की खिलाफत मौलाए कायनात के विसाल और हजरत इमाम हसन मुश्तबा की सुलह के बाद सही भी है और साबित भी है। ये वजह है। इसलिए अरे समझ में आई बात आपके? कुछ समझ में आया? आए? दीन उलमा से सीखा जाता है, दाढ़ी मुंडों से नहीं। मुरीद बशरा लोगों से होया जाता है, बोल बराज वालों से नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? जिनकी शक्लें इतनी बदबूदार हो, उनसे लोग कैसे मुरीद हो जाते हैं, कैसे जाकर के उनके करीब हो जाते हैं? मुरीद बना जाता है आखिरत संवारने के लिए, आखिरत बर्बाद करने के लिए नहीं। इसलिए कि पीर कैसा होना चाहिए? इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं, कुल्लु मन काना मुतअल्लिक़न बिनबिय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्द अन यहज़ुरहु फी क़ब्री व याख़ुज़ु यदहु फी शदाइदी। फरमाया जो नबी रसूल वली के दामन से जुड़ा है ना, ये सब उसकी कब्र में तशरीफ लाते हैं। अरे बोल भाई बोल। कब्र की बात कर रहा हूं जहां कोई साथ नहीं देगा, कम से कम इस पर तो बोलना चाहिए। क्या कहा? कब्र में तशरीफ लाते हैं। हमने कहा जो खुद बदबूदार और बेकार है वो तुम्हारी कब्र में क्या आएगा, उसकी कोई बचा ले। फरमाया वया खुजू यदहू फी शदाइदी, और फरमाया सख्तियों में उसका हाथ थाम लेते हैं। पीछे वालों यार समझ में आया हो तो बोल तो जाओ, कसमें खा के आए हो क्या? तवज्जो है? सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों जरा तवज्जो करना। इधर मुसल्ला निकला, उधर लिखा है अला इन्ना औलिया अल्लाह, इधर लिखा है सलामुन अलैकुम अहलल बैत। तवज्जो फरमाइएगा, यहाँ मुसल्ला निकल गया। अब मुसल्ला ना तो आसमान में है ना जमीन में है, ना पानी पर है, बल्कि कहाँ था? रिवायत के अंदर है तख्ते सुलेमानी की तरह फजा में लटका दिया गया। पीछे सफे लग गई, सफे लगी, हुक्म हुआ अब्दुल कादिर मुसल्ले पे चढ़ो, नमाज पढ़ाओ। सुन्नियों, अगर तुम्हें बैतुल मुकद्दस का हाल मालूम है तो इधर का भी हाल देख लो। मस्जिद अक्सा में मेराज की रात कौन चढ़ा था मुसल्ले पर? कौन आया था मुसल्ले पर? कौन कदम रंजा हुआ था मुसल्ले पर? किसने कदम फरमाया था? हुजूर अलैहिस्सलाम ने। आज सफे लगी है, मुसल्ला खाली है,
नमाज पढ़ने वाला कोई अपने वक्त का कुतुब है, कोई औताद है, कोई वजीर है, कोई अफराद है, कोई औताद है, कोई अब्दाल है, कोई मुजबा है, कोई सुलहा है, कोई अतकिया है, कोई अपने जमाने का बड़े से बड़ा कुतुब है, कोई मस्तूरुल हाल बुजुर्ग है, कोई मजजूब है। ये सब के सब सफे लगाकर पीछे खड़े हैं। उधर अब्दुल कादिर जिलानी नमाज पढ़ा रहे हैं। हमने कहा शक्ल सूरत देख ले जरा, कैफियत देख ले जरा। सैयदी गौसे पाक के नाना जान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ लेकर के जा रहे थे, तो आपने बैतुल मुक़द्दस के अंदर नबियों की रसूलों की इमामत फरमाई थी। आज अब्दुल कादिर जिलानी इमामत फरमा रहे हैं। तस्लीम भाई बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? अगर बैठे हैं तो थोड़ा सा आगे आए ताकि मैं उनको भी एक चीज बता दूं। अभी इन्होंने एक शेर पढ़ा था गजा के बारे में, बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जल्दी बोलो। अगर चाहते हो तो एक हदीस मैं भी गजा के बारे में सुना दूं जो अभी अभी मुझे याद आई है, जिसको मेरे आला हजरत ने फतावा रज़विया में जिक्र किया है। हदीसें तो दो है लेकिन मैं सिर्फ एक हदीस सुना रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला इहदल अरूसैनी अस्कलाना औ गज़्ज़ा। सरकार फरमाते हैं मुबारकबाद है, मुबारकबाद है उसके लिए, खुशखबरी है उसके लिए, मोस्ट वेलकम है उसके लिए, मोस्ट वेलकम है उसके लिए, स्वागत है उसके लिए, खुशखबरी है उसके लिए। सरकार किसके लिए? मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह दो दुल्हनों की तरह सजने वाले शहरों में से एक शहर में रहने का मौका अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। दो शहरों को नबी ने दुल्हन कहा। ऐसे कुरान की दुल्हन कौन है? जल्दी बोलो। सूरह रहमान। कुरान का दिल कौन सी सूरत है? सूरह यासीन। हुजूर ने दो शहरों को दुल्हन कहा। कौन से दो शहर? हुजूर ने फरमाया दो शहर जिनमें पहला शहर शहर अस्कलान है, ये भी फिलिस्तीन में है, और दूसरा शहर शहर गज़्ज़ा है, ये भी फिलिस्तीन में है। अब एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं अख्तर भाई, ये कौन सा है? काथी 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 है। हाँ अब आगे मत बोलिए, फिर काथी बता दीजिए वरना अपने गांव का नाम भी भूल जाएंगे, है ना? काथी है ना? खुदा ना करे, खुदा ना करे, बेशुमार बार खुदा ना करे, मैं कह रहा हूं अगर आपके यहाँ बमबारी होने लगे, जवान मरने लगे, बच्चे गिरने लगे, और मैं आपको फोन करके कहूं काथी वालों तुम्हें मुबारक हो, तुम काथी में रहते हो, हर आदमी कहेगा मौलाना ये ताज़ियत है या तौहीन है। बज़ाहिर आप समझेंगे, मगर चूंकि ये फरमान किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के ताजदार का है। सरकार ने फरमाया मुबारकबाद है उनके लिए जिनको अल्लाह रहने के लिए शहर अस्कलान दे दे या शहर गज़्ज़ा दे दे। हे मदीने के ताजदार, मेरे छोटे छोटे बच्चों को वहां पर बमबारी करके मारा जा रहा है, बूढ़ों को बेसहारा बनाया जा रहा है, मेरी बहन बेटियों को बेवा बनाया जा रहा है, मेरे जवान भाइयों के लाशें उठ रहे हैं। सरकार उनके लिए मुबारकबाद कैसे है? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बोलती है, जरा तवज्जो फरमाइएगा, उनका मरना दुनियादारी के लिए नहीं, इस्लाम की वफादारी के लिए है। आखिर मारे क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि वो बैतुल मुक़द्दस को बचाना चाहते हैं। मारे किस लिए जा रहे हैं? वो अल्लाह के घर को बचाना चाहते हैं। मारे इसलिए जा रहे हैं कि जहां से सरकार मेराज के लिए आसमान की तरफ बढ़े थे, उस मुक़द्दस जगह को बचाना चाह रहे हैं। लिहाजा उनका लड़ना दुनिया के लिए लड़ना नहीं है, आखिरत के लिए लड़ना है। और जो दीन के लिए लड़ता है और कुर्बान हो जाता है, शरीयत में उसको शहीद कहा जाता है। ए मेरे आका, उन छोटे छोटे बच्चों को जो शहादत का जाम पी रहे हैं, उसमें रहने वालों को हम ये कैसे कह सकते हैं कि उनके लिए मुबारकबाद है? तो मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, सुन सुन कुरान पाक पर, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। लोग कहते हैं 1 किलो उन पर जो है असलहा बम गिर चुका है, 1 किलो उनके ऊपर मटेरियल गिर चुका है, 50 ग्राम गिर चुका है। लोग काउंटिंग कर रहे हैं। अगर पूरे बमबारी को देखा जाए तो इतना बारूद उनके ऊपर गिर चुका है। हमने कहा ये तुम्हारी दुनिया की मार है। सरकार फरमाते हैं, अला इन्ना शहीदा ला यजिदु अलमल कत्ली इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल करशा।
मेरे नबी ने फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद किया जाता है उसको शहादत के वक्त, जख्म खाने के वक्त, चोट खाने के वक्त सिर्फ इतना ही दर्द होता है जितना तुम्हारे च्यूटी के काटने पे दर्द हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब जिंदाबाद। और फरमाइएगा, करम करम। हमने कहा दूसरी हदीस सुनो। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन शहरे अस्कलान से, कोई मसला है? हाँ तो सुनिए जरा ध्यान से। शहरे अस्कलान से सरकार फरमाते हैं युबासो सबऊना अल्फा रजुलिन, अस्कलान से मिनहा यौमल क़ियामा। हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन शहरे अस्कलान से 70,000 लोग कब्रों से ऐसे उठाए जाएंगे ला हिसाब अलैहिम, जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, बात समझ में? माशाअल्लाह, वाह। अब गौसे पाक की तरफ बढ़ो जी अभी तो मैंने तकरीर शुरू भी नहीं की है। जी, मुसल्ला लगा। अब जितनी भी चीज है अभी तो मुसल्ला लगा है। गौसे पाक ने नमाज भी अभी नहीं पढ़ाई है और नमाज से फारिग होकर के अभी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ भी तो करना है, तभी तो मुझे कादरी कर कादरी रख पढ़ना है। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, वाह। समझ गए? क्या बात है। हाँ, आला हजरत को पढ़ते रहो, हकीकत में मसाला कम नहीं होगा। हकीकत है, सच्ची बात है, आला हजरत को पढ़िए मसाला कम नहीं होगा। करम करम। गौर फरमाए, सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ा दी। इन शॉर्ट नमाज पढ़ा के फारिग हुए, गौसे पाक दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि जद्दी नबीका व खियरतिका मिन खल्क़िक अल्ला तक़बिज़ रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन इल्ला अला तौबा। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज से फारिग होने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे मौला मैं अपने नाना जान का वसीला देता हूँ जो तेरे नबी है और तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारे है। इतना बड़ा वसीला देकर जो वसीला कभी आदम अलैहिस्सलाम ने भी पेश किया था, नबी के सहाबा ने पेश किया था, हजरत सहाबा ने पेश किया था, अहले बैत ने पेश किया था, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा वसीला देकर अर्ज करते हैं, ए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब कदीर, जिन्हें मेरे सिलसिले कादरिया में क़यामत तक जितने भी मर्द और औरत मुरीद होने वाले सबको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा देना। कादिरी कर कादिरी रख कादिरिया में उठा कदरे अब्दुल। अब तो दुआ हो जाए मौलाना साहब, अब खामोश मत रहिए, देखिए फिर मुझे भी थोड़ा सा जलाल आने लगता है जब मेरे बिरादरी के लोग खामोश रहते हैं। कादिरी कर कादिरी रख कादिरिया में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरतुल मा के वास्ते। मोहब्बत से जरा अब सुभान अल्लाह, करम, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत खलीफाए ताजू शरिया मुनाज़िर अहले सुन्नत शेरे रज़ा उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। उर्स है सरकार मुजाहिदे मिल्लत का। अब चूंकि मुझे हुक्म एक दो उन्वान पर बोलने का हुआ है, हालांकि सरकार मुजाहिदे मिल्लत पर मेरी तकरीरें भी हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बोल भी सकता हूँ। बस मैं आपको ज़्यादा तफसील में न जाकर ये बता दूँ कि मुजाहिदे मिल्लत के दयार धामनगर शरीफ में हाज़िरी दिया करूँ, इसलिए कि मुजाहिदे मिल्लत अगरचे रहने वाले थे उड़ीसा के, मगर दिए बरेली वाले ने। ये बरेली वाले ने। अगर जहन हासिल हो तो एक बहुत मजे की और पते की बात बता दूं।
आला हजरत के इंतकाल के बाद सरकार मुजाहिदे मिल्लत के ताल्लुक से जो 17-18 साल का नौजवान है जी, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान ख्वाब में देखते हैं कि आला हजरत अपने इंतकाल के बाद आकर फरमा रहे हैं, बेटा अहमद रजा खान, आला हजरत फरमा रहे बेटा हामिद रजा एक बंदा है, आलिया कादरिया मोहम्मदिया फैज से नवाजिए और उसको दीनों सुन्नियत की खिदमत की जो है ताकीद कीजिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एड्रेस बताया, चेहरा वही है जो हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गों का मौका है। अहले सुन्नत वल जमाअत के आज की इस बज़्म में हाजिर हैं। हालात को ज़माने के ऐसे न थे, मगर हमारे अहबाब के असरार पर 3 या 4 दिन के बाद जमात अहले सुन्नत वल जमाअत के अदाब और उलमाए अहले सुन्नत की तशरीफ़ आवरी है। आज की इस बज़्म सईद में वहीं बैठे थे। सरपरस्त होने की हैसियत से मैं ऐलान करता हूँ कि आज की इस वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने गए, देखा 17-18 साल का कोई नौजवान बैठा हुआ है, कोई नौजवान बैठा है, जैसे ही नजर पड़ी तो नाम का ख्वाब याद आ गया, चेहरा भी याद आ गया, कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? आपने अपना नाम बताया, कहा चलो मेरे साथ चलो। आपने खिलाफत से भी नवाज दिया है और अपना कलम भी फरमा दिया है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कहा था अपने बेटे से अपना फैज़ दे दीजिएगा, दीन और सुन्नियत की तबलीग के लिए उनको ताकीद कर दीजिएगा। सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने उनको ताकीद भी फरमाई है और उनको सारी चीजें अता फरमा दी है। हमने कहा वो मुजाहिद निकला और निकल के आया, कहा आपके उड़ीसा में आया, आपके इलाके को सैराब ज़माने के किया, हालात ऐसे नहीं नहीं ये हजरत सरकार मुजाहिद मिल्लत रहने वाले बड़ी संजीदगी के साथ नगर शरीफ का है उड़ीसा मैं दोनों लेकिन जिस जमात की इस तंजीम की तरफ से मुसल्लम है, वो कोई और नहीं बरेली का इमाम है। इसलिए मैं कहता हूं मुजाहिद बाद में तुम्हारा पहले हमारा पहले इश्क मोहब्बत फैज़ाने सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हुजूर हबीबे मुनासिर अहले सुन्नत मशाइख़ ज़वील एहतराम और मसला समझ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम आज के वरहमतुल्लाहि दौर ताला में सही वबरकातुहू। जानशीनी हुजूर हबीबे मिल्लत का मैं सैयद सल्तान हैदर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हैसियत फला आल है, फला आल है, फला आल है। और मैंने कहा सब बेहाल है। हैसियत हकम यहाँ पे हाजिर हूँ और हकम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे मालूम हुआ कि ये दो तहरीरें मेरे सामने हैं हर दो तरफ की। मसलक को पढ़ा है और मेरे पीर सरकार ताजुश शरीया ने एक जुमला इरशाद फरमाया, कुछ नहीं मेयार मसलके आला हजरत है, लिहाजा ताजुश शरीया कहते हैं मुझे भी चेक करो, मेरे खानदान वालों को भी चेक करो, हर आलिम को चेक करो, वमा तौफीकी जो आलिम जो पीर जो पेशवा जो रहनुमा हजरत के मसलक पर हो, मुझे जो हालात मालूम हुए थे मैं आप की तवज्जो खास तौर पर चाहूँगा। मुझे जो यहाँ पे हालात मालूम हुए थे वो ये कि अहले सुन्नत के दो फड़ हैं, दो फरीक हैं जिनमें आपस में कुछ मसाइल पर कहासुनी हो गई है और वो मामला जो है कशीदा हो गए। ये मुझे परसों पता चला। मैं यहाँ पे हाजिर हुआ इन दोनों की इस्लाह करने के लिए। यहाँ पे हम पता चला कि यहाँ पे मुनाज़रे का माहौल पैदा हो गया है। ये जो तहरीरें मेरे सामने हैं इनके अंदर मुझे ऐसा कोई मसला नहीं दिखता कि जिसके अंदर जिस पे मुनाज़रा किया जाए। लिहाजा मैं आप हज़रात से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए हैं, बहुत शुक्रिया। आप अपना हुक्म लगा दें, उसके बाद चूँकि हम तो इसमें इंक्लूडेड थे ही नहीं, हमारा नाम इसमें इंक्लूड कर लिया गया है और माशाल्लाह बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। तो आप हज़रात जो हैं वो इस पर अपना हुक्म लगाएं और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला बाकायदा तैयारी के साथ आप हज़रात के साथ मुनाज़रा किया जाएगा और शराइत व ज़वाबित अगर अमल करने वाला होगा उसको ताजुश शरीया कहेंगे और अगर अमल करने वाला अशद रज़ाकार होगा कायदे मिल्लत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे बरेली शरीफ। बात समझ गए? अरे
समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। तस्लीम भाई वो हजरात जिन्होंने बार बार इसरार करके तस्लीम भाई को नहीं सुनो, मुनाजरे के लिए बार बार चैलेंज किया, भाई को बोल रहे हैं, तस्लीम भाई को सुनो। अब अभी ये गुफ्तगू सामने आई कि अभी कोई तैयारी नहीं, आगे तैयारी करके मुनाजरा किया जाएगा, तो फिर सामने से ये दावत कि मुनाजरे के लिए गुफ्तगू में दरमियान में बैठना है, या तो ये गुफ्तगू होती कि बैठ कर कुछ मसाइल पर बात करना है, उसके बाद तय होने के बाद फिर मुनाजरा होगा। मगर तहरीर ये दी जा रही है बार बार, शासन को भी यही तहरीर दी गई, तमाम लोगों को भी ये तहरीर पहुंचाई गई कि मुनाजरा ही होना है। मुअद्दब है, हालांकि एक ज़माने से इनसे ताल्लुकात आपकी तरफ से मुनाजरे के लिए दावत दी गई। अल्लाह हमने आपकी चैलेंज को, आपने जो मुनाजरे का चैलेंज किया, हमारी जमात ने उस चैलेंज को आपके एक्सेप्ट किया, कबूल किया। ये नहीं कि बस पूरे स्टेज पे घूमते फिरे इधर से उधर, इधर से उधर। शख्स इसकी वजाहत करें कि जिन्होंने ये तहरीर लिख कर दी है कि इस पर ऐसे भी क्या है, मुनाजरा होना है और इस पर बात होना है, संजीदगी के साथ एक जगह बैठ तो अभी की गुफ्तगू दुरुस्त है या जो ये गुफ्तगू, इससे बेशतर जो गुफ्तगू तहरीरी तौर पर लिखकर बातें दी गई वो उसके ऊपर क्या? सरकार की नात पढ़ना वो तो अच्छा है, अल्लाह ताला मुफ्ती शहजाद साहब को सलामत रखे। भाई चैलेंज किया, हमने आपके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने मैं आगे बताएं। दो बातें अर्ज कर रहा हूँ, है ना, छटाई तो क्योंकि इस मसले में काफ़ी दिनों से उससे झांसी को लोग राब्ते में रहे। अब मैं नहीं जानता कि इसमें मौलाना अफजल बरकाती साहब कौन है। इनका पहले भी चैलेंज मुनाजरा 2 अनावीन पर आ चुका था, तो मैंने थोड़ी तफसील हल्की से सुन ली जाए। कि अगर और हालात मुल्क के कैसे हैं सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें ये भी इस मसले को मैंने तकरीबन 4 से 5 महीने तक टालता रहा और मैं ये कहता रहा कि उनको समझाइए, हो सकता है कि मौके पे अहले सुन्नत उनकी समझ में आ जाए। पहले इनका चैलेंज मुनाजरा कापी के पन्ने पर लिखकर भेजा गया और वो अफजल बरकाती साहब ही की तहरीर थी। तो मैंने उस पर कहा कि ये कोई चैलेंज मुनाजरा नहीं होता है, इसको लेटर पैड पर लिखवा करके भेजा जाए। दूसरी नशिस्त हुई, उस दूसरी नशिस्त में बाकायदा चैलेंज मुनाजरा किया गया जिसकी कापी हम लोगों के पास मौजूद है और उसमें 2 उन्वान मुंतखब किए गए। पहला उन्वान ये कि हम मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को विलायत और इमामत में पहला मानते हैं, खिलाफत में चौथा मानते हैं। दूसरा उन्वान मुंतखब किया गया कि हज़रत अमीर माविया सहाबी रसूल कातिब वही खालिल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हम कफ़े लिसान का कौल करते हैं, जिसकी वजाहत चैलेंज करने वाले ने खुद ये की कि कफ़े लिसान का मतलब है कि ना तो तारीफ की जाए और ना ही मजम्मत की जाए। तो ये 2 उन्वान मुंतखब करके दूसरी बार फिर चैलेंज मुनाजरा करके और बाहमी रजामंदी से ये सारी चीज़ें की गई और उसके बाद एक नशिस्त हुई, आपसी गुफ्तगू हुई। प्रशासन को कुछ अपने शराइत भी पेश किए गए, जो शराइत उनके पास भी मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है। और हम लोग चैलेंज मुनाजरा करने वाले नहीं हैं। चैलेंज मुनाजरा मौलाना अफजल बरकाती साहब ने किया और बार बार ये भी कहा कि हमारे पीर साहब इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करने के लिए आएंगे, जैसा कि खबर हमें मिली। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना लंबा मसला होने के बाद ये सारे मसले से लाइल्मी और उसके बाद ये कहना कि हमको इसका इल्म नहीं था, तो ये इसका मतलब या तो ये है कि मौलाना अफजल साहब ने सारा मसला आप हज़रात से छुपा कर रखा और अगर छुपा कर नहीं रखा है और ये मसला वाज़ेह तौर पर उन्होंने लिख कर दिया है, तो फिर ये सारा इंतज़ाम इंसराम और ये सारी चीज़ें इस बात को बता रही हैं कि जब हम लोग आ ही गए हैं तो या तो शराइत मुनाजरा पर बात कर लें और मुनाजरे की कोई डेट मुतय्यन कर लें, या फिर हमसे जैसा कहा गया था और लेटर में लिखा हुआ है कि हम लोग शराइत तो हो चुके 2 बार और ये एक की तहरीर नहीं है, तरफ़ैन की तहरीर है जिस पर दोनों रज़ामंद हैं। आप बताइए दोनों की रज़ामंदी से वो तहरीर गई थी ना? आप बताइए आप लोगों की रज़ामंदी से गई थी वो तहरीर? हम लोगों को तो मालूम नहीं। मैं बरेली शरीफ से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब जमनाशाही से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोगों के पास ये चीज़ पहुँची और हम लोगों ने इनको भी समझाया और उनको समझाइए अगर ऐसा कोई मसला है बैठकर बात करने की तो हम बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन इसरार ये हुआ कि नहीं मुनाजरा ही होगा, मुनाजरा ही होगा। तो
अब जब यहाँ सारी चीज़ें हो गई हैं, प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि या तो शराइत मुनाजरा तय कर लिया जाए या फिर असले मौके पर गुफ्तगू कर ली जाए, ताकि आने का कुछ तो महासन निकले। पर हमला हो रहा है तो मेरा इमाम किताब लिखता है तर्जुल अफाई अलहिबाई, उर्दू में नाम फजीलत गौसे आदम है। अगर सरकार के मीनार पर हमला होता है तो इमाम किताब लिखता है हबीबी बल विशाल। अगर सरकार के हमला होता है उनको मुनाज़रा काफिर कहा जाता है तो मेरा इमाम जहाँ तक बात इसे जो लेटर ये मुझे भी मिला है, किताब 2 दिन या 3 दिन पहले व्हाट्सएप के जरिए से मुझे मिला ये लेटर, तो मैंने भी इनको बोला कि ये मुनाजरे के लिए आप भी देख सकते हैं, लेटर आपके पास होगा, उसमें देखिए मुनाजरे के लिए चैलेंज के लिए बड़ा नाकिस लेटर है। एक तो चैलेंज मुकाबला या इस तरह का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे किसी को चैलेंज किया हो इसने। ये कह रहे हैं जिन 2 मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, की खबर दे रहे हैं, किसको चैलेंज कर रहे हैं ये भी नहीं है, किसको चैलेंज कर रहे हैं ये बात वाज़ेह ही नहीं है। तो सामने से आके कौन क्यों एक्सेप्ट कर रहा है कि हमें चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है? एक तो चैलेंज है नहीं इसमें, सब लोग गौर से देख लें, चैलेंज नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने अपना मौक़िफ़ जो भी इख्तियार किया तो इस पर आपने क्या हुक्म लगाए हैं? इमाम साहब मुनाज़रा करके ये क्या नतीजा निकालेंगे, ये इस पर ये क्लियर करें कि हमने ये हुक्म पे नाफिज़ कर दिया है। आप इनको अहले सुन्नत में दाखिल करना चाहते हैं, मोमिन साबित करना चाहते हैं, मुसलमान साबित करना चाहते हैं, तो दलाल दीजिए। आपने तो कुछ कहा नहीं, इनको क्या कहेंगे आप? क्यों मुनाज़रा कर रहे हैं? कुछ कहना ही नहीं आपको, कोई मकसद नहीं, इसका कोई है ही नहीं है। जब मुनाज़रा करना इसका आवाज़ है, लव है, इस तरह से जो है, इसीलिए हमारे यहाँ से हम लोग वाकई में ये जो है ना, इस बात को वहाँ से लेकर चले कि हम इस्लाह लेकर चले। अगर दोनों पक्षों में सुलह हो जाएगी तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम मुनाज़रा के कायल कतई नहीं हैं। आज तक हमने मुनाज़रा की महफिल में शिरकत नहीं की। मुनाज़रा करना हमारा जो क्या कहते हैं पेशा नहीं है, हम मुनाज़रा के कायल नहीं हैं। अपने आप को मुनाज़िर कहलवाना पसंद नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिह कहिए अगर हम कहना चाहते हैं, नहीं कह सकते वो भी मत कहिए। हम इस्लाह पसंद है, इस्लाह चाहते हैं, फिर भी खैर आपके बारगाह में ईज़ा है, अगर आप मुनाज़रा के ख़्वाहां हैं, नहीं मुनाज़रा ही होगा, आप हुक्म लगा दीजिए। खानकाह बरकातिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, इंशाअल्लाह जो है आके वहाँ पे बैठ के चाहेंगे तो बात करेंगे, और डिबेट करना चाहेंगे, मुनाज़रा करना चाहेंगे तो मुनाज़रा होगा वहाँ। मेरी गुजारिश है हमने अपनी जानिब से मुतकल्लिम और उनका मुआविन गुफ्तगू जो भी जिस पर हो या शराइत मुनाज़रा पर हो, आप अपनी जानिब से मुतकल्लिम का इंतखाब करें और उसके बाद आगे गुफ्तगू जिस कमेटी ने, आप मुझे ये कमेटी बताए कि आप हजरात ने हम लोगों को किस लिए बुलाया है? भाई हम तो आप हजरात से बार बार यही पूछ रहे थे, वो ये कमेटी आप लोग हजरात बताएं कि आखिर हम लोगों को क्यों बुलाया गया? मेरे कान से भी नहीं टकरा, जब किसी उस पर बात होना ही नहीं थे, ना मुनाज़रा होना है, ना कुछ उस पर वो होना है, तो फिर आखिर बुलाया क्यों गया? वजह क्या है? शिकवे अपनों से किए जाते हैं, आप हजरात ने दूसरे पेज पर ये जो है आपने हम लिखा अपनों है को बचाने आए हैं। मुनाज़रा तय पाया गया, मुनाज़रा तय पाया गया, मुनाज़रे की तारीख तायुन की बताई जाएगी। मुनाज़रे आप लिख रहे हैं उसमें कि मुनाज़रा तय पाया गया, मुनाज़रा तय हो गया। दोनों फरीक़ैन ने आपस में आपके गुफ्तगू में बैठकर आपने क्या डिसाइड किया? डिसाइड करने के बाद तो लेटर आपने आम किए हैं। मैं एक बात अर्ज कर रहा था, ये जो लेटर पैड मेरे हाथ में है, जितने भी फिरके वाले हैं, ये थोड़ा बताइए। मरकजी सुन्नी मदीना मस्जिद, मुझे बताएं, बाबुल इल्म फाउंडेशन, वजह ये मोहर किसकी है? के पास इस जैसी किताबें, आप मुझे बताइए, आप हजरत बताइए, आप हजरत की मोहर नहीं है? सदर मोहतरम कौन से हैं इसमें? और आपकी तरफ के जो सदर है, जैसे इधर से शरीफ भाई है, उधर से कौन सदर मुंतखब किया? मैं उनसे थोड़ी सी बात पूछना चाहता हूँ। चौथी जमात ये आपने किया है ना? तो इसमें शुरू में लिखा हुआ है मुनाज़रे की दिनांक 22/10/2024, दोनों पक्षों की सहमति से। तो मैं मोहतरम जो आपने नाम तो मुझे याद नहीं है, मैं आपसे थोड़ा सा अर्ज़गुज़ार हूँ
कि आप जो ये कह रहे हैं कि इसमें चैलेंज का कहीं लफ्ज नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, इसमें लिखा है दोनों पक्षों की सहमति से, और नीचे साइन भी है, और ऊपर इन लोगों ने जब चैलेंज मुनाजरा कबूल किया है तो लिखा है जनाब मोहम्मद अफजल इमाम खतीब मदीना मस्जिद क्या केवर ठेकड़ी की तरफ से जो चैलेंज मुनाजरा किया गया। अगर वो चैलेंज मुनाजरा नहीं कर रहे थे तो उनको इस तहरीर पर एतराज़ करना चाहिए था कि मैंने चैलेंज किया ही नहीं है। वो मौलाना अफजल साहब कौन से, जरा थोड़ा चेहरा नजर आ रहा है, आप बताइए आपकी मौजूदगी में ये तहरीर लिखी गई कि नहीं? उसमें कोई वली पैदा नहीं हुआ। नहीं, ये वाली जो तहरीर आपने दी है ये आपकी तहरीर है कि नहीं है, जो दो उन्वान पर आपने बात करने के लिए कहा? कादिर जिलानी हमारे पास है, नहीं इसी वाली हमारे पास ये हाफिज तारीख तो इसी वाली है ना, ये वाली हाफिज तारीख की। ये जो दो मनावीन का इंतखाब किया था आपने, मैं मोहम्मद अफजल हुसैन बरकाती जो लिखा हुआ है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है वो मंदरजा झेल है। तो एक बात मैं मोहतरम समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं चैलेंज मुनाजरा नहीं है, जबकि पहली ही लाइन है जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। ये बाबुल इल्म फाउंडेशन का लेटर पैड है और इसके शुरू में लिखा हुआ है जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है वो मंदरजा झेल है। तो उसको चैलेंज मुनाजरा आप कैसे नहीं मान रहे हैं? क्या उसके लिए लफ्ज़ चैलेंज का होना ज़रूरी है? और अगर चैलेंज का होना ज़रूरी है तो आप इस तरफ देखिए कि जब इधर कहा गया कि जनाब मोहम्मद अफजल इमाम खतीब की तरफ से जो चैलेंज मुनाजरा किया गया तो इमाम साहब को चाहिए था कि वो इनकार करते इस चीज़ का कि मैंने चैलेंज कब किया है। उन्होंने इनकार तो नहीं किया, उन्होंने दो उन्वान खुद लिख कर दिए और अपने लेटर पैड पर दिए। एक बात, दूसरी बात यह है कि हुक्म लगाइए हम पर, अभी तो गुफ्तगू होगी ना, गुफ्तगू के बाद दलाइल सामने आएंगे तब इंशाअल्लाह रहमान जो हुक्म शरा होगा वो बयान कर दिया जाएगा। आपकी तीसरी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि सुलह कर लीजिए, तो ये कोई घरेलू झगड़ा नहीं है, ना बाप दादा का झगड़ा है ना शादी का है कि भैया मना करके बिठा लो। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जानते हैं यहाँ पर जो भी बात होगी वो कुरान और हदीस और जो हमारे अदिल्लाए अरबा हैं उनकी रोशनी में होगी, और हुक्म शरा जिस पर जो लगेगा वो वाज़ेह हो जाएगा। इसमें हम एक दूसरे के साथ गले मिलकर बात करके सुलह कर लें, ये सुलह वाला मसला ऐसा नहीं है। इसकी सुलह सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में है, और कुरान और हदीस की रोशनी में सुलह उसी वक्त होगी जब हमारी आपसी गुफ्तगू इस मौके पर हो जाएगी। वही मसलक के आला हज़रत है, इसके लिए कहा गया जी। आप इसको कह रहे हैं कि इसमें मुनाजरा का चैलेंज आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात ही अगर ले रहा हूँ कि आपको मुनाजरा का चैलेंज समझ में आ रहा है तो वही बात तो मैंने अर्ज़ की थी आपसे, आपको समझ में आ रहा है तो आप इनको जो है लगाइए, इन पे क्या आप इससे क्या अखज़ करेंगे, क्या इनको बनाएंगे, क्यों हम मुनाजरा करें? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बात हुक्म शरा तो बात का मसला है ना, चैलेंज समझ में आ नहीं रहा है, चैलेंज लिखा हुआ है। अच्छा आप थोड़ा सा एक मिनट में अगर माजरत के साथ इमाम साहब जो बैठे हैं, हम एक दूसरे के तर्जमान बनने के बजाय आप इन्हीं से ज़रा माइक देकर के इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने दो बार चैलेंज किया कि नहीं किया और किस नीयत से किया था। ये थोड़ी वजाहत कर दे, बात समझ में आ जाएगी। जी बताइए, क्या कहते हैं पूरी कर दी जाएगी। जी बताइए ना। मेरा नाम तो मुमताज़ हुसैन खान अज़हरी, जामिया रसूल का मैं खादिम हूँ। जी इसमें लिखा है जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, यही बात इसमें लिखी है ना, करना है। कोई बात हुई है या नहीं हुई है? अगर कोई बात हुई है तो हमारे पास जो पेपर है इसमें कोई बात हमें दी नहीं गई है, हमारे पास नहीं। इसमें चैलेंज क्लियर उनका समझ में नहीं आ रहा है। और फिर सुनिए आप भी तौजीहुल कौली बिमा ला यर्दा बिहिल काइल के बजाय आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना। आप कह रहे हैं कि चैलेंज समझ में नहीं आ रहा है, जब काइल सामने बैठा है तो इनसे कहलवाइए आप कि चैलेंज किया था कि नहीं किया था। आप उनकी तर्जमानी ऐसी कर रहे हैं जबकि काइल सामने मौजूद है। के इलाके में ऐलान करके आया, बोले आज तक सारे मुल्लाओं से कहता हूँ वो भी फासिद मौजूद है। तर्जुमानी तो आप अपने हिसाब से भी तो कर रहे हैं इसकी। मेरी तरफ से तो जो बंदा है और जो चीज़ है, चैलेंज आपकी तरफ से था, हमने कबूल किया इसलिए हम बोल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं चैलेंज है नहीं, तो इसकी वजाहत वो करेंगे। चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। नहीं हजरत देखिए, वाज़े तौर पर इस बात को समझ लीजिए कि चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। तो ये फिर लेटर के बारे में मैं क्या कहूँ? ये लेटर के बारे में वही उसी चीज़ को देखने के लिए ही तो मैं आया हूँ मेरे भाई, उसी चीज़ को देखने के लिए जब यहाँ पे पता चला कि आपसी तसादुम हो गया है। अच्छा तो बातों को लेकर मौलाना अफजल साहब से पूछवा दीजिए फिर, इन्होंने चैलेंज नहीं किया है। आप बताइए क्या था, हम क्या समझे इसको? जो दो तहरीरें आपकी आई थी इसको हम क्या समझे? माइक दे दीजिए मौलाना अफजल साहब को। इन सारे मुल्लाओं से चैलेंज करता हूँ कि ये मुझे बता दें आप उलमा की बात है, सिद्दीक़ उलमा नहीं बोले तो सिर्फ मौला कहना। माइक दे दीजिए। वो जवाब पड़ा हुआ है। मैंने जो कहा, अच्छा बोल क्या रहा है?
हुजूर ने फरमाया अंता सिद्दीक़ अकबर। पहले करने वाला बता दे, मिला जिसको है वो बात का मसला। मैं आपको कोई चीज़ चेने गया तो पहले मैं बताऊंगा मैं देने गया था, आपने उसको हासिल किया तो आपका मरहला बात का आएगा। तो पहले जिसने किया है वो बताए। तो अरबी में है ना, वो या फिर ये कह दिया हदीस भी पढ़ के सुना। अफजल साहब आप क्या कहना चाहते हैं? आपने सामने से चैलेंज किया है उनको, नहीं किया है, आप अपनी बात वाज़ेह करें। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का कौल है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर से जिन लोगों ने हदीस रिवायत की है उनमें एक इबाद नाम का और एक उबैदुल्लाह नाम का, ये दोनों शिया थे और दोनों ने हदीस। शरीफ भाई बात सुनिएगा ध्यान से, बात समझे कि नहीं समझे? और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर सुनो, मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहीते साहबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का आलम क्या है, जरा तवज्जो करना। जाल मुशरिकूना ये जो बात हो रही है मेराज की रात, सरकार मेराज की रात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के बाद सरकार से भी मुलाकात नहीं हुई अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की। कमेटी के जरिए मेराज से वापस आने के बाद फिरोज भाई की ऑफिस से बैठक हुई हरम में बैठकर बता रहे हैं आज रात में मेराज के लिए गया था, मेराज के लिए गया था, मेराज के लिए गया था। इतने में अबू जहल के कान से आवाज टकराई, बड़ा बौखला गया और उसके बाद जाने लगा सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के पास आया। मुझे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के पास आया और कहा तुम्हें पता है तुम्हारे नबी क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं बैतुल मुक़द्दस चला गया, हमने का एतराज वही करता है जो अबू जहल मामला हल करने के लिए। उन्होंने कहा था कि इल्मी बात करने के लिए बाहर से उलमाए किराम को बुलाकर आपसे गुफ्तगू करें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के पास गया, कहा तुम्हें मालूम है वो कह रहे हैं हम लोग गए थे आपसी में बैठ करके बात करके इस मसले को हल करने के लिए, और उन्होंने कहा था बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा, वो आएंगे वही इल्मी मुबाहिसा करेंगे। उस वक्त हमारा कोई और जब दूसरी नशिस्त में बैठक हुई, जब दूसरी नशिस्त हुई तो मैंने उस वक्त कहा भी था उनसे, हाफिज साहब मौजूद थे, मैं बोला कि मैं लिख करके देता हूँ। मैंने मौलाना याकूब साहब से ये भी कहा कि आपने ही कहा था कि आपसे इल्मी मुबाहिसे के लिए बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा। अगर मैं झूठा हूँ तो आप कुरान सर पे रख करके कह दीजिए, मैं अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस वक्त वो थोड़ी सी वो अपने मुद्दे से हट करके बात करने लगे और उन्होंने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया दूसरी नशिस्त में कि मैंने कहा था कि बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा। अबू बकर सोचेगा नहीं, हर बात ये हकीकत है। आगे की बात बता दीजिए। और उसके बाद मुफ्ती अहमद साहब भी थे, जब दूसरी नशिस्त हुई थी हम लोगों की, सुभान भाई के घर पे हुई थी, तो वहाँ हमने कहा था कि क्या नाम है, हम तो लिख करके देते हैं, आप हमारे ऊपर हुक्म क्या लगाते हैं। उस वक्त भी सारे लोगों ने हाथ उठा लिया था हमारे तरफ से। ये जो हमने लिख करके, ये हमारी सबसे बड़ी ये है मिस्टेक, हमने लिख करके दे दिया था, लिख करके दे दिया था। लेकिन टोचर साहब इस जुमले पे गौर कीजिएगा, अच्छों के लिए, लेकिन मुनाजरे की चैलेंज मौलाना याकूब साहब की तरफ से किया गया था। उनकी कोई सनद कोई दलील है आपके पास, कोई लेटर पैड है कि उसने चैलेंज मुनाजरा आपको किया हो? सुन्नी लड़के लेकर के आए तो वो अच्छी है, क्या कह रहे हैं? किसी और फिरके में जाओ मत, इसलिए कि वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि मौलाना याकूब साहब ने चैलेंज मुनाजरा किया था। अरे यार, तो अब जो लेटर पैड आपके और मेरे सामने मौजूद है वो तो मौलाना अफजल साहब का है ना, तो मैं ये तो हक रखता हूँ ना कि आपसे पूछ लूँ कि भाई उन्होंने चैलेंज मुनाजरा किया है तो उनका कागज़ कहाँ है। एक बात थोड़ी सी, दोनों सदर जो हैं वो भी ज़रा इसमें कुछ अपनी तफसीली गुफ्तगू दे दें तो बेहतर है। दूसरी बात, मौलाना अफजल साहब एक बात बताइए, ये मसला उठा कहाँ से था? ये सारी नौबत आई क्यों? किसकी गुफ्तगू पे आई, किसकी तकरीर पे आई, किसके नज़रिए पे आई? समझ में नहीं आता, गौर फरमाइएगा। आज खैर काफ़ी हद तक वो कह भी चुके हैं। अब सामने से इमाम साहब ताहिर साहब, आपने क्या समझा फरमाते हैं दोपहर का वक्त हम लेटा हुआ था, अचानक मेरी आंख लग जाती है, मैंने आला हजरत को उनके इंतकालो विशाले पुरमनाल के बाद याकूब साहब की बात जहाँ तक वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो कुतुबे मदीना है रहते भी मदीने सरकार कुतुबे मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं मैं घर में लेटा था, मदीने शरीफ हमारे सामने जो बातें हुई हैं, जहाँ का जिक्र अभी हमारे हमें इशा से कबल पहले बताया गया तवज्जो फरमाइए, फला जगह पर मशवरे के लिए बैठना है, कुतुबे मदीना और ज़ियाउद्दीन फरमाते हैं मदीना मस्जिद के इमाम साहब मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं, उसी सिलसिले में गुफ्तगू होनी है। हालांकि हम लोग ना मुनाजरे के एतबार से हम वहाँ पहुँचे थे, जबकि ये जो है कारी मोहम्मद अफजल साहब बाकायदा अपने मुनाजरे के एतबार से किताबें लेकर के ये पहुँचे थे, और हम लोग सिर्फ इस बुनियाद पर पहुँचे थे कि वहाँ कुछ बातें वैसे ही होनी है। हमें ये मालूम नहीं कि वहाँ पे मुनाजरा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें इस बात का इल्म है ही नहीं।
जबकि ये खुद अपनी किताबें तमाम चीज़ें लेकर के आए थे। हमने इनसे कहा, मैंने भाई ये किताबें आप लेकर के आए हैं तो किस बुनियाद पर लेकर के आए हैं? तो इन्होंने कहा था कि भाई ये जो मैं किताबें लेकर के आया हूँ आज मसले को हल करें। मैंने कहा देखिए ये मसला जो है ये इतना आसान काम नहीं जितना आप समझ रहे हैं, समझे। और यहाँ पर हमें जो बुलाया गया है वो इस मकसद के लिए बुलाया गया, ना मुनाज़रे के एतबार से हमें बुलाया गया और ना ही किसी चीज़ के लिए बुलाया गया हमें। मैंने कहा आपसे, मैंने इनसे ये कहा, मैंने भाई अगर ऐसा है तो आप अपना अकीदा बयान करें और अपना अकीदा लिखें, फिर उसके बाद में हमारे जो उलमा आएंगे फिर वो गुफ्तगू करेंगे। इन्होंने जो है बाकायदा तहरीर सबके सामने लिखी कि मेरा ये अकीदा है। तो चैलेंज तो आप ही तो करवा रहे हैं। चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। तो सुनिए, मसला हल करने गए थे किताब लेके, मसला हल कर लिए होते। भाई ये बताइए ना, तो आप हम तो वहाँ पर किसी हाफिज साहब चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि आप ही करवा रहे थे, तो अल्लाह ने सामने वाले को इतनी अक्ल दी है ना, उसने हम कुछ भी कहें वो एकदम तस्लीम कर लेंगे उसको। हमने आपसे कहें कि आप ये लिख दीजिए, आप लिख देंगे। हम ये कहें कि जो मौक़िफ़ आपका इसमें है उस मौक़िफ़ से रुजू करके आप जो है अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ आप बयान कर दीजिए, तहरीरी शक्ल में दे दीजिए, आप दे देंगे फ़ौरन। आपने अल्लाह ने आपको इतनी अक्ल दी है और समझ दी है कि आप सामने वाले के कहने पर अगर मान लीजिए वो उकसा भी रहा है तो आपको तो अपना पूरी तरीके से सब्र रखना था। किताबें ही आपकी ये बता रही हैं कि आप वहाँ पर अपने एतबार से गुफ्तगू करने गए थे। हाफिज साहब ने कहा कि मैं जो है मशवरे के लिए बुलाया गया था। दूसरी बात, किताब लेके जाना मतलब मुनाजरा करने जाना। मुनाजरा करने की बात नहीं कर, लफ्ज़ मुनाजरा मैंने नहीं बोला है। आप ऑन रिकॉर्ड है, मेरी बात नहीं, चैलेंज भी नहीं बोला है, बात मसले को हल करने की बात मैंने बोली। ऑन रिकॉर्ड आप हो सकते हैं, किससे होंगे? किससे फिर होंगे? किताब से नहीं होंगे। किताब लेके गए थे आप, गए थे, चले गए थे। मसाइल किताब से हल नहीं होंगे तो फिर किससे होंगे? हमारे बुजुर्गों की दलीलें कहाँ हैं? आसमान से नुज़ूल वही का सिलसिला तो मुनक़ते हो गया है। बुजुर्गों ने जो किताबों में लिखा है जो अदिल्ला अरबा, उन्हीं से बात होगी ना। पॉइंट बना रहे हैं आप कि किताब लेके गए थे, उनकी नियत क्या थी समझ में आ रहा है। एक बात मुझे बताइए अजरी साहब, चैलेंज मुनाजरा आप कह रहे हैं, आपने करने के लिए कहा, उन्होंने क्यों कहा, फिर क्यों लिखा चैलेंज मुनाजरा? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। चैलेंज का तो मैं मौक़िफ़ ही नहीं हुआ कि चैलेंज किया उन्होंने। आप कैसे कह रहे हैं? लेटर मिला है, चैलेंज कहीं से नहीं मिल रहा है। मेरे अल्लाह, ये जो इबारत आपने देख ली, दोनों तरफ से जो लिखा हुआ है इनका, वो जुमला निकालिए जरा, फिर देखते हैं। जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है वो कहते हैं कि मेरे ये आप ही का है, मैंने दिखा दिया बार बार, उसके तौसीक़ कराने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि चैलेंज मुनाजरा में तस्लीम नहीं कर रहा हूँ? सही लफ्ज़ के अंदर आप जो है ताबील बेजा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक उर्दू पढ़ने वाले आदमी को आप पढ़वा दीजिए, वो आसानी से समझ जाएगा कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, ये चैलेंज मुनाजरा नहीं है। नहीं, ये चैलेंज मुनाजरा कैसे नहीं है? आप बताइए कैसे नहीं? ये मुझे क्या कहते हैं, हमें जिन दो मसाइल पर मुनाजरा करना है, किसको कहते हैं? ये जुमला ये इसी में बात समझ बता रहा है। देखिए आप बातें दूसरी तरफ ले जाइए, घुमाइए नहीं। आप बैठिए, बात जो है मेरी और अजरी साहब की बात चल रही है। चैलेंज की, चैलेंज किसने किया? चैलेंज एक्सेप्ट किसने किया? हमने एक्सेप्ट किया है। मैं इससे जो समझ पा रहा हूँ कि चैलेंज मुनाजरा इससे नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है किसी की तरफ से भी हो सकता है। ये जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना है, चैलेंज किसने किया? मौलाना अफजल साहब नहीं, ये तो इसमें वाज़ेह नहीं है। ये क्या लिखा है? ये कह रहा है जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना है। हजरत ये अजरी साहब एक बात सुनिए, अभी इन्होंने एक जुमला बोला है कि हमसे मिस्टेक ये हुई कि हमने लिख करके दिया। क्या लिख करके दिया? ये जो लेटर लिख करके, ये क्या है? इसको आप क्या कहेंगे? ये उसको उन्होंने समझा। आप इसका नाम मुझे बता दीजिए, इसको क्या कहेंगे? लफ्ज़ तहरीर मत बोलिएगा, वो आम लफ्ज़ है। खास इसकी इस्तिलाह में आपकी इस्तिलाह है जो उर्फ है, इस्तिलाह है, उसमें क्या बोला जाएगा इसको मुझे ये बता दीजिए आप। और ये किसका नाम है? मौलाना मोहम्मद अफजल बरकाती, और मैं जो है इमामत वगैरह ये सब बयान कर रहे हैं, ये मौलाना अफजल साहब हैं। इन्होंने खुद एतराफ़ किया ना अभी कि मैं जो हूँ वो मुझसे मिस्टेक ये हुई है कि मैंने लिख करके दिया है, और लिख के जो दिया है वो सामने ये है कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि मैं इसको मुनाजरे का चैलेंज नहीं समझता? आपके समझने से नहीं होगा। करीब गया, आला हज़रत गायब हो जाते हैं। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वक्त चूँकि देखिए हम लोग भी बहुत दूर से आए, आप भी बहुत दूर से आए। बात पूरी हो, कमेटी के लोगों से मैं कहूँगा कि अब आप लोग क्या चाहते हैं वो बताइए, क्योंकि हम लोग आपकी दावत पे आए हैं ना। हम इनसे कह रहे हैं कि आप बताइए क्या चाहते हैं। आप हजरात बताइए, आप हजरात ने हमारा वक्त भी लिया है रात का। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, रात एक प्रोग्राम में शिरकत करके आया, मुफ्ती साहब को बिना उस्ताद मोहतरम 2 जगह से प्रोग्राम कैंसिल करके इधर आए, और ये हमें बताया गया कि वो हजरात बार बार चैलेंज मुनाजरा कर रहे हैं। तो अकीदा अहले सुन्नत के दिफा के लिए हमारी आखिरी सांस भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तैयार है, और उसको बस देने के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आ गए हैं तो आप दोनों हजरात बताइए आप क्या चाहते हैं। इन्होंने कहा कहाँ तक जाएंगे? मैंने
मैंने कहा भुवनेश्वर तक जाऊंगा, कहा कटक तक मुझे भी लेकर के चलिएगा। गाड़ी में बैठे मैंने उतारा, 200 किलोमीटर चले ना मैं उनको उतारा, कटक आया उतार दिया। मैंने कहा चूंकि मेरी नसाई थी इसलिए मैंने उनको वहां तक पहुंचा दिया। इमाम अहमद रजा खान के मसलक से मोहब्बत करने वालों, उनके नजरियात पर अमल करने वालों, और है तो ये मौलाना अफजल की तरफ से ही है। करने वालों सुनो, ये आला हजरत है, ये हमने पहले हमारे सरकार साहब ने पहले इस्लाह कर दी उसकी कि हम जो है हमारा हल्का है, हमने इंतशार देखा, इंतशार की खबर हमें मिली, आपस में इंतजार हो रहा है, हमारे अगर सुलह मुसालत से सुलह हो जाती है तो ठीक है। हमने तभी कहा था आप अगर मुनाजरा ही करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, इसमें आप हुक्म लगा दीजिए या जो भी मामला आप कर दीजिए। मुझे आप बोलने दीजिए, मुझे आप बोलने दीजिए सर, मैं आपको पूरा मौका देता हूँ, मुझे आप बोलने दीजिए। मुझे मेरी बात आप लीजिए, जो आप लोग हो जाता है ना। ये मामला है जिनको मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, इस लेटर से सब सारे अहले दानिशों को मुतवज्जह करना चाहता हूँ। ये कहीं नहीं वाज़ेह होता है कि मौलाना अफजल साहब ने ही चैलेंज किया है। हो सकता है हिज़्ब मुखालिफ ने चैलेंज किया, हमें करना है, ये भी कह रहे हैं। हो सकता दोनों की बातें हो सकती हैं, इसमें जो पॉसिबिलिटी है दोनों इम्कान दोनों है, दोनों की तरफ से चैलेंज हो सकता है। दूसरी बात मैं है ना कि इन्होंने जो लिख के अपना जो नोट दे दिया है ना कि मेरा ये है ना इनका मामला अपना, मैंने कहा एक शेर को इतना चेक करते हो तो अकीदे को भी चेक किया करो। अगर शेर को चेक करते हो तो जरा सुनियो, उसने लिखा है कि मैं मोहम्मद अफजल है ना, वो जो क्या कहते हैं चैलेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, बोलिए आगे बोलिए। ये चैलेंज जो है जब चैलेंज का हमने जिक्र नहीं है, ये तरफ से हो जाता है। जी जी आप बोलिए। जी जी बोलिए। 10 मई पे जो एक मीटिंग जो फिरोज भाई साहब की घटी हुई थी है ना, इसमें जो मोहम्मद अफजल साहब की कोई दस्तखत नहीं है, इसमें जो दस्तखत ताहिरुल कादरी रिजवी साहब के हैं। फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, आप लोग मुनाजरा करना ही चाहते हैं, मुनाजरा करने आए हैं, जो भी कर दिया आप इनकी गलती मान रहे हैं, गलती माने जो आप मान रहे हैं, आप डिसाइड कर दीजिए फुल एंड फाइनल, क्या आपका मामला लग गया, हम मुनाजरा करेंगे आपसे। एक बात मुझे बताइए कि जब हुक्म शरा लगा दिया गया, हुक्म शरा का जो मसला है, हुक्म शरा अगर लगा दिया गया तो फिर आपकी तरफ से मुनाजरा या फिर मुनाजरे की गुफ्तगू कहाँ हुई? फिर आप कहेंगे एक तरफा हुक्म लगाया गया, यही आप बोलेंगे। तू कौन है? एक बात, दूसरी बात, मौलाना अफजल साहब अब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये बताइए कि जब इन लोगों ने ये लिखा था, ये आपकी तरफ से वो था जो कौन सा बाबुल इल्म करके है, बाबुल इल्म फाउंडेशन, ये आपका लेटर था। जब आपने लेटर दिया था एक तरफ, जब आपने लेटर दिया था उसके बाद इन्होंने उस लेटर को कबूल किया और ये कबूलियत का जो मसला है वो उसी महफिल में था, उसी नशिस्त में था ना, बोलिए उसी नशिस्त में था। मैं तो एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा इन्होंने किया और इसरार किया गया कि आप फौरन कबूल कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, आप बोलिएगा। ये जो तहरीर लिखी गई थी जनाब मोहम्मद अफजल इमाम खतीब वाली की तरफ से चैलेंज मुनाजरा किया गया है, ये तहरीर आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? आपके हाथ में तहरीर आई थी? आप अगर चैलेंज मुनाजरा नहीं करें, देखिए तौजीहुल कौली बिमा ला यर्दा बिहिल काइल का मैं काइल नहीं हूँ। अजरी साहब अपनी तरफ से एतमालात निकाल रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। काइल सामने मौजूद है, काइल कह रहा है कि एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा हुआ और एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा को कबूल किया गया। अगर आपने चैलेंज मुनाजरा नहीं किया था तो फिर आपने इस तहरीर को एक्सेप्ट क्यों किया? मैंने ये कब कहा कि मैंने चैलेंज मुनाजरा उसी नशिस्त में किया? किसी में किया, किसी में कबूल किया? मैंने चैलेंज नहीं किया था मुनाजरे। अच्छा, तो मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया था। अच्छा, तो ये क्या था? चैलेंज मुनाजरा है ही नहीं, वो लफ्ज़ मुनाजरा नहीं लिखा, चैलेंज है ही नहीं है, मुनाजरा नहीं लिखा है, लफ्ज़ मुनाजरा लिखा है लेकिन चैलेंज लफ्ज़ नहीं लिखा। लफ्ज़ सरी को देकर के आप बिल्कुल इस तरीके से इनकार कर रहे हैं। बताइए, ये इनका अपना इंडिया है, आप इसी के कायल नहीं करें। ये जो इन्होंने लिखा है मौलाना अफजल साहब की अपनी तहरीर है, ये इनका अपना इंडिया है, आप भी उसी के उसी जुमरे में है। ये जो इनकी तहरीर है, जो मौके पर उन्होंने जिक्र किया है, आपने अभी पढ़ के सुनाया। तो ये मुनाजरा मेरे ऊपर नहीं आया, आप मुनाजिर या मुतकल्लिम के हैसियत
शिष्य हैं ना पहली बात ये हो रही है, आप बात कर रहे हैं ना इतनी देर में, जरा मोहब्बत से बोलो। तो जाहिर सी बात है आप मत कीजिए, फिर आप मुतकल्लिम ही है। नहीं, मुनाज़रा के शराइत हर मुतकल्लिम नहीं, हम लोगों ने पहले ही मुंतखब कर लिया कि मुफ्ती साहब मुतकल्लिम में मुआविन, और मुआविन को मुतकल्लिम की मौजूदगी में बोलने का हक होता है। हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि आप अपना मुतकल्लिम मुतय्यन कर लीजिए, आपने नहीं किया, लेकिन आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप मुतकल्लिम हैं। रास्ते हैं, इनमें से हर रास्ते पर शैतान बैठा है, कोई शैतान अपनी तरफ बुला रहा है। आज सोशल मीडिया जैसा शैतान भी बैठा है, इसी मुनाज़रा ही समझ रहे हैं जो दूसरी बात मेरी आ रही है, बीच में सब मामले रह जाए। अज़हरी साहब आपने बोला कि मैं मुनाज़रा, मेरे ऊपर मुनाज़रा थोड़ी हो रहा है, तो फिर मैं आपसे बात क्यों करूं? जैसा शैतान भी बैठा है, इसी तरीके से ठीक है, आप अपना इंडिया में बताइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसको जो समझ में आए मेरा इंडिया वो उसके ऊपर करेगा। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह में ये भी शामिल है कि वल मुरादु बिल मुक्तदी में यातक़िदु शयअन अला खिलाफि मा यातक़िदु अहलुस सुन्नती वल जमाअह, ये भी इंडिया समझ गया पूरी तरीके से। आपका जब वो इंडिया नहीं है तो आप अपनी उनकी तर्जमानी, या तो आप कहिए मैं तर्जमानी कर रहा हूँ उनकी, और अगर तर्जमानी नहीं कर रहे हैं तो मुतकल्लिम साहब कहते हैं कायल मौजूद है, कायल बता दें कि अब भी इनका ये इंडिया है कि नहीं है, जो आपने लिख के दिया आप इसी पर कायम है या फिर इससे आप रुजू कर रहे हैं? 1 मिनट, आप इनके इमाम साहब की तर्जमानी कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका नजरिया मेरा नजरिया, मैं उनके नजरिए की तर्जमानी करता हूँ। उनके इमाम एक्सेप्ट अगर आपके हिसाब से मैं देखिए हजरत चैलेंज हुआ है अज़हरी साहब, मैं जो बोल रहा हूँ ये जितने हजरात बैठे हैं इस तरफ, मैं सबके नजरिए का तर्जमान हूँ। आपकी तरह मैं आप उनकी बोलने के उनके वकील हैं आप? जी, मुझे अभी हजरत ने क्या कहा, मुतकल्लिम और मुआविन मुतकल्लिम। एक्सेप्ट, अच्छी बात है, तवज्जो है। ऐलान तो यही किया था ना मैंने कि मैं सरपरस्त होने की हैसियत से, जमात की जानिब से सरपरस्त होने की हैसियत से अपनी सरपरस्ती के ऐलान के बाद मैं मुतकल्लिम का भी ऐलान कर रहा हूँ और जो है मुआविन का भी ऐलान कर रहा हूँ। तो जब मैं सरपरस्त होने की हैसियत से इन 2 हज़रात का मैंने ऐलान कर दिया, इंतखाब कर दिया, तो ये इधर से 2 हज़रात बैठे हुए हैं ना, तो मुतकल्लिम और गुफ्तगू करेगा या मुआविन करेगा, वो हम सबकी ही तो उससे होगी। बात मैं जिस तरफ ले जा रहा हूँ, आप सरपरस्त हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा आप सरपरस्त हैं? आप कह रहे हैं। अच्छा, तो ये अज़हरी साहब अभी आप 1 मिनट, आपने अभी कहा, मैंने कहा ये आपका इंडिया है, आपने कहा मेरे सरपरस्त ने पहले ही कह दिया, तो जब आप सैयद साहब को सरपरस्त मान सकते हैं तो हम सैयदजादे को सरपरस्त क्यों नहीं मानेंगे? दूसरी बात सुनिए, सरपरस्त बनाने का इख्तियार आपको नहीं है, हम अपना सरपरस्त अपनी कमेटी में जिसको चुनेंगे हमें पूरा इख्तियार है, आप जिसको चुन ले आपको पूरा इख्तियार है, हम जिसको मुतकल्लिम बनाए हमें पूरा इख्तियार है, इसमें आपको इंटरफेयर करने का कोई मसला नहीं है। ये आप डायरेक्ट से हटने की बात कर रहे हैं। सरपरस्त बनाया गया है, आपको वकील बनाएंगे, तरफ से बोलने की वकील है आप। अरे तो कितनी बार मैं आपको बताऊं, कितना बार मैं आपको बताऊं? वकालतनामा दिखा दीजिए आप। कौन लाए थे? वकालतनामा दिखा दीजिए। जी, आपको वकील बनाए इन्होंने? आप लोग तो कम से कम बोल दीजिए जोर से, आप कह रहे हैं इनको पता नहीं है, ये इसकी जगह आप ये बोल देते हैं, वही पता चल जाता। अच्छा, आपको एक्सेप्ट इन्होंने किया था ना? हाँ, आपको वकील बनाया, तरफ से बोल रहे हैं ऐलान हुआ ना, मुआविन और मुतकल्लिम और मुआविन मुतकल्लिम हम देखना चाहते हैं। अच्छा, आप किस हैसियत से बोल रहे हैं? हाँ, मैं वकील हूँ इमाम साहब का। कहाँ है आपके पास? है कुछ कोई सनद है? आप दिखा देंगे? आप बताइए ना। मैं दिखा दूंगा, आप दिखा देंगे? हम जाहिर सी बात है, वकालत के लिए 2 चीजें, तहरीर चाहिए, तकरीर चाहिए। ये सआदत ये समझता हूँ कि उस जैन को उठाकर कटक के लोगों ने उलमा में जोड़ दिया, ये सदका उसी ज़ैनुल आबिदीन के जैन का तवज्जो है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से वापस आ गए। एक और करीब कर रहा हूँ बात, ध्यान से मेरी बात मैं मोहम्मद हुसैन इब्न गियासुद्दीन गियानी अपनी तरफ से आज होने वाले ये बताइए मुनाज़रा में फिर इन्होंने लिखा है करने का वकील दोबारा पढ़िए उस लाइन को, दोबारा पढ़िए। मुनाज़रा और आप अभी क्या कह रहे थे? मुनाज़रा करने नहीं है। के चैलेंज पे मेरी गुफ्तगू हो रही है, मुनाज़रा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो आपने ये तो कहा ना कि मैं मुनाज़रा करने के लिए, अब हमें थोड़ा कागज दीजिए। वो कह रहे हैं थोड़ा कागज दीजिए, अभी अब जाहिर सी बात है, हम तो मुनाज़रा करने आए हैं ना। एक दिन एक शख्स, इसमें कौन सी बात है? बोलिए आप जो आप उनके वकील हैं, अरे भाई, हम लोगों को बुलाया किस लिए? हम लोगों को बुलाया किस लिए? आपको बुलाया किस लिए? नहीं, हम तो इस्लाह के लिए आए, तो उसमें आपने मुनाज़रा क्यों, उसको आपने सनद के तौर पे जो दिखाया कि देखिए वकालतनामा करेंगे, आपने कहा कि वकालतनामा है, अभी दिखाया ना आपने, उसमें लफ्ज़ मुनाज़रा है कि नहीं? तो आपने मुनाज़रे से क्यों भाग रहे हैं? अजीब मामला है अज़हरी साहब, आपने जामे अज़हर में इतनी तालीम की है। बात नहीं हो रही, मुनाज़रा चैलेंज पे बात हो रही है, चैलेंज उनकी तरफ से। ठीक है,
ये बात एक मिनट सुन लीजिए। चैलेंज पे बात हो रही है, आप कह रहे हैं चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है, तहरीर में भी साबित नहीं कि चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है, वो भी इनकार कर चुके हैं कि मैंने चैलेंज नहीं किया है। अब आपको चाहिए क्या? सुनिए फिर एक मिनट, अब आपको मुनाजरा ही करना है तो ही तो हम कह रहे हैं शराइत या जो भी मामला होता है मुनाजरा के वो आप तय कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, मुनाजरा जो करना वो इनकार कर चुके हैं, चैलेंज भी साबित नहीं हो रहा है इससे। अच्छा तो एक मिनट मुझे एक बात ये बता दीजिए, एक मिनट आप कहते हैं जब उनका चैलेंज नहीं है साबित, आपके एतबार से, मेरे एतबार से नहीं, आपके एतबार से जब चैलेंज साबित नहीं है तो ये वकालतनामा लेके आप क्यों आए? और उसमें मुनाजरा आपने लिखा है, आप तो पढ़े लिखे, आपने क्यों उसको उन्होंने बताया, वो उन्होंने लिखा। आपने मुझसे कहा कि वकालतनामा दिखाइए, आपने इस वकालतनामे को तस्लीम किया कि नहीं किया? तस्लीम किया कि नहीं किया? मुनाजरा में नहीं होता अपनी तरफ से किसी को कोई गुफ्तगू करने के लिए। हज़रत साहब कभी उसी बात को आप रद्द कर रहे हैं, उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने मुझसे कहा आपने वकालतनामा दिखाइए, आपने दिखाया ना, आपने मैं अपने अहबाब से उसकी तस्दीक कराऊंगा कि मैं वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने अकीदा अहले सुन्नत का भी वकील हूँ, समझ गए आप? सही है का मैं भी वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सुनिए जरा, आपने जब उनकी वकालत को, दी हुई वकालत को, उनकी तवकील को आपने तस्लीम कर लिया, तस्लीम किया कि नहीं किया? अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये उनका लिखा हुआ है, ये उनका लिखा हुआ है? इसका मतलब ये उनकी तहरीर से राजी होना खुद इस बात की दलील है कि आप उनके वकील बनने के लिए तैयार हो गए, और जब तैयार हो गए तो उसमें लफ्ज़ मुनाजरा है, तो इसका मतलब ये है कि आप शुरू से ही मुनाजरा करने के लिए आए हैं, और अब आप कह रहे हैं मुनाजरा करने नहीं आए, मसला करने आए हैं। आज की लिखी हुई हज़रत, इस पे डेट भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कैमरे में, इसको स्कैन कर लीजिए, कोई बात है ना। ये तो 21 की 10 है, ये तो ताज़ी भी लग रही है, अभी ये तो तहरीर लगी है, समझ रहे हो ना? अरे गौर किया करो कभी अपनी साथ, ये है अब अगर मुनाजरा का करेंगे, मुनाजरा का चैलेंज हम एक्सेप्ट करेंगे, शराइत तय करेंगे, मुनाजरा करेंगे, हम उसके लिए भागेंगे नहीं, तय करेंगे, मुनाजरा अब तक फिर क्या हुआ? ये करके दिखाओ ना, क्या हुआ उसके तो मसला नहीं है, हम 12 कह चुके हैं, हम तो सुलह के लिए आए थे कि आपसी में। के बारे में क्या ख्याल है? आपने फरमाया फरमाया मैं उस साथ के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के लिए वही के लिए खास फरमा दिया था। उसके बाद आपने फरमाया अब्दुर्रहमान मुआविया था, आप फरमाते हैं कुल्लियत अबू अब्दुर्रहमान मुआविया, आप कहते हैं हज़रत मुआविया अमानतदार भी थे, नहीं उसमें शराइत नहीं होना, उसमें मुनाजरा ही होना है। तो भाई अगर ये सारी चीजें नहीं थी तो फिर आपने क्यों की? जब नहीं था कोई मसला तो फिर आपने किया क्यों? आपने फरमाया सैयद साहब कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, अजहरी साहब वकालतनामा लिए घूम रहे हैं, आप हजरात की गुफ्तगू में खुद एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ, आप लोग मशवरा कीजिए भैया, अगली बात कीजिए। देखिए ये जिस तरह की बातें जो है आप कह रहे हैं कि अजहरी साहब वकालतनामा लिए घूम रहे हैं, सैयद साहब को मालूम नहीं है, आपने भी 2 दिन की बात कही, आज का है हजरत, मैं उनकी तरफ से बात करूं, मैंने लिखवा के रख लिया था कि आप एतराज़ ना करें कि मैं क्यों बात कर रहा हूं। क्या हुई थी? मसला कैसे क्लियर? असल में सैयद साहब जो ये मुनाज़रा पूछा शक्ति का माकार आपके और आपके दादा कि मैंने कर दिया इन लोगों को, आप भी पहले फुर्सत में पहले इसको करने दीजिए जो आप तहरीर दिखा रहे हैं कि मुझे इन्होंने अपना वकील बनाया, तो मैंने भी तो यही गुजारिश की थी कि भाई आप तायुन कर लें, आपकी जानिब से सदर जो था वो बोलते या इमाम साहब बोलते या हज़रत बोलते कोई भी बोले, भाई मैंने तो गुजारिश पहले ही की थी कि उसको वादे कर दिया जाए कि कौन गुफ्तगू करेगा, भाई मुझे गुफ्तगू वाली जो मुनाहिर हुआ इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ठीक है बोलिए सैयद साहब, एक मिनट, क्या कहना मुनाजरा आप कह रहे हैं आपके मुनाजरा चैलेंज हुआ, मुनाजरा का एक्सेप्ट आपने नहीं किया था, जिसने किया था आपसे चाहिए थी कि हमारी तरफ से ये बात करेंगे, है ना, तो बात की बात हो रही तो बात समझ में आती, जब जरूरत पड़े हमारे पर एतराज़ करें, वकालतनामा हम लिए घूम रहे हैं, इतना बड़ा हमने क्या कर दिया, जाहिर बात हमने उनसे कहा कि हमारे ऊपर कोई एतराज़ नहीं, भैया आप बोलिए भैया, देखिए बेमकसद बात करने से फायदा, हाँ आप कर लीजिए बिल्कुल, इसलिए कि हमारे पास इन
बुजुर्गों ही का सहारा है। अभी मुनाजरे का वक्त नहीं है। इसमें जो है हमने एक लाइन लिखी थी कि शरायत मुनाजरा के बाहर कर वक्त देते मुनाजरा, हैं। साहब की मुखालफत करके अकीदा कैसे बचा? लेकिन इनकी तरफ से इमाम साहब की तरफ से लेटर आया था कि 2 बार शरायत हो गई, अब मुनाजरा ही होगा। और जो इसमें लिखा है, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तहरीर में लिखा है, वो इनके साइन है, मोहर है, इसका लेटर बेटे से उनसे चला बेटा हमें दलील दे और उसी वक्त हमने इनका चैलेंज वाले सुबह जमान ने कबूल भी कराया। इसकी तहरीर है। और दूसरी बात, अब दलील तुम दो अपनी आप बचाने लोग की। भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रशासन के सामने ये बात नहीं थी कि मुनाजरा ही होगा। ये चीज की भी लिखा था। झगड़ा जंगे से फील्ड पर है ना। मैं प्रशासन ने दिया, इनकी जिम्मेदारी लोगों ने साइन करे, हमारे भी जिम्मेदारी सामने और इस मसले को और इमाम साहब की तरफ से चैलेंज था, हमारी तरफ से कोई चैलेंज का तो चाहिए, चैलेंज कहाँ से हुआ? इन्हीं की तरफ से चैलेंज वो तो इनकार कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं हो रहा है। चैलेंज सनद की बेटा हजरत कमेटी उनका चैलेंज नहीं तो लफ्ज़ चैलेंज को इनकार क्यों नहीं किया उन्होंने? हजरी साहब कर दिया इसमें कि आप उनको बुलवाइए। आपके चैलेंज को कबूल करते हैं। तो उसी वक्त इमाम साहब का ये कहना था कि पहले आप हमने देंगे उसका हैंड चैलेंज लिख कर देना, हमने चैलेंज उसका कबूलनामा दिया है, उसके गवाह ये सुभान भाई के घर पे बैठ के सल्लल्लाहु ताला अलैहि आप वसल्लम कह रहे कि नहीं, और प्रशासन के सामने अधिकार साहब को भी चले गए, खुद लिख के दिया था इसका, दिवाली में लिख के दिया। इसके तो मुमकिन है कि चैलेंज हमने नहीं किया था। दूसरी बात तो हम कह रहे हैं ना भैया, उन्होंने चैलेंज दिया, कबूल करा इसका चैलेंज। बात आप मना क्यों कर रहे हैं इस बात के लिए? अच्छा सुनिए, एक मिनट आपसे तो गुफ्तगू भी मुझे नहीं करनी थी। बहरहाल आप उसे चैलेंज ही समझ रहे हैं, तो मैं कह तो रहा हूँ तो उसके शराइत नाकिस हैं, शराइत बयान करके मुनाजरा आप कर लो ना। तो मुनाजरा करने की बात तो हम कह रहे हैं, आप मुनाजरा करना चाहते हैं, वो तो हम चाहते थे मुनाजरा से अगर बच जाए, बात सही हो जाए, समझौता हो जाए तो ठीक है, नहीं बचना है तो कीजिए समझौता। मैंने पहले ही अर्ज किया कि समझौता क्या अहकाम शरा और अदिल्ला अरबा की रोशनी में बातचीत होगी। ये कोई वैसा समझौता नहीं है, क्योंकि आप मुनाजरा करना नहीं चाह रहे हैं, बात करना नहीं चाह रहे हैं, तो कैसे समझौता हो जाएगा? थोड़े आप थोड़ा सा बोलिए। आप लोग रियल में क्या चाहते हैं? है ना कि मुनाजरा ही नहीं होना है या समझौता होना है, क्या होना है, क्या करना है, मुंतशिर रहना है? ठीक है, दुनिया के मसाइल और हैं तो कीजिए, मुनाजरा भी किया जाएगा। फिरोज भाई के मकान पर जो बात कहने लगे तो उसमें मसला खत्म करने के लिए गए थे और उसकी वीडियो दोनों कमेटियों के पास। जब इन साहब ने उसमें कहा कि मैं तहरीर लिख रहा हूँ, जो मैंने लिखा हुक्म लगाइए, तो ना कोई हुक्म लगाया, बस पर्चे लेके 3-3 महीने सब खा। दूसरा जो अभी सुबह घर की मीटिंग का बात की, वहाँ जो मीटिंग हुई वहाँ भी कोई हुक्म नहीं लगाया, जो उसमें लिखा है वही लिख के अपने लेटर पैड पे ले लिया गया है। और इस मामले को जगह दीनी मामला था, तो दीनी मामले को फिर वहाँ ले आया गया, उसको दे दिया जाए। अब जब वहाँ प्रशासन में मुनाजरा या डिबेट बताई जा रही, जब मुनाजरा फिर बताना नहीं पड़ेगा उन्हें, क्योंकि प्रशासन को खुद मालूम है कि दीनी मामला में क्या कर सकते हैं। तो इमाम साहब ने जो बात कही थी वो इन्होंने अपनी तरफ से उनको खुद कहा, ये वीडियो दोनों कमेटियों के पास कि आप कहिए, उन्होंने कहा इनकी तरफ से उसमें कोई ऐसी बात करते हैं कि भाई हम इस पर हुक्म ये लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, तकलीफ बात नहीं, मुझे ज्यादा करना भी नहीं। गौर फरमाइए, अब मुफ्ती साहब से मैं हज़रत अल्लाह मुफ्ती अब्दुल साहब से कहूँगा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली से मोहब्बत करते हो? कहा फवल्लाहि लज़ी ला इलाहा इल्ला हु इन्नी लहु मुहब्बन शदीदा, मुझे खुदा की कसम मैं अली से खूब कर मोहब्बत करता हूँ। ये जवाब उस नबी के सामने दिया जा रहा है जिसकी नजर में, जल्दी बोलो ना, कहाँ रहती है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हुजूर ने फरमाया अच्छा, तो कहा इन्नहा सतकूनु बैनमा हुदैन वनुसल्लिमु अला हबीबिल करीम मुआविया। सुनो, अम्मा बाद करीब तुम दोनों के अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मालिक यूद वल करम वाल किराम अजमईन। एक ही जंग हुई है, वो कौन सी जंग थी? हमें इस जल्दी बोलो, कौन सी जंग मुनाज़रा गाह में हुजूर फैसला कर रहे हैं। हुजूर ने 1 बजे का टाइम देकर बुलाया गया था। हम उस वक्त से यहाँ पर हाजिर हैं और इस वक्त 3:15 बज रहा है। हुजूर उसके बाद क्या होगा? 2.25 घंटा आप सबने वक्त यहाँ पर सर्व किया। दोनों तरफ की बहुत सारी बातें सामने आई। ने फरमाया, ए मुआविया सुनो,
जिसने भी मौलूद मुनाजरे का चैलेंज किया हो या इस फरीक ने किया या उस फरीक ने, लेकिन बात तो मुनाजरे की आई और इतना इसरार किया गया, इसमें शिरकत के लिए कि मजबूरन सफर करना पड़ा। हर एक की अपनी मसरूफियात। सैयद साहब ने बताया कि यहाँ आने के बाद हालात का मुझे यूँ इल्म हुआ। जनाब अफजल साहब कह रहे हैं कि मैंने चैलेंज नहीं किया, तो अगर उनकी तरफ से चैलेंज नहीं है तो इधर से कबूल भी नहीं है। उन्होंने किया नहीं चैलेंज तो इधर से गोया कबूल भी नहीं है, तो ये मसला तो हो गया ख़त्म। अब रही ये बात कि जो दोनों मौजू, मैं लफ्ज़ मुनाजरा भी नहीं बोल रहा हूँ, चलिए ये दो बात जो इसमें लिखी गई और आवाम आज इस स्टेज पर आई कि इस पर बहस होनी चाहिए। हमें तो मालूम नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, आपको भी नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा था वो यहाँ हो रहा था। लड़ाई झगड़ा शरारत किसी की तरफ से जो कुछ भी है इधर से वो सब यही है। हम हो या आप हो, हमें और आपको बुलाया गया। आप कह रहे हैं इन्होंने चैलेंज नहीं किया, उस पर भी बात आ गई कि मामला क्या है। अब अगर वाकई इस्लाह मकसूद है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। खानकाहे मोहम्मदिया कालपी शरीफ के साहिब सज्जादा इधर तशरीफ फरमा है। खानकाहे बरकातिया के अपनी फ़िक्र की नुमाइंदगी करने वाले ज़िम्मेदार वहाँ मौजूद हैं और जितने लोग यहाँ पर हैं सज्जादा नशीन, ये सब के सब ये सब के सब जितने भी हजरात मौजूद हैं, ये इसमें कोई कादरी होगा, कोई बरकाती होगा, कोई रज़वी होगा, दोनों ने अपने नाम के आगे अहले सुन्नत लगा रखा है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ आखिरी बात अर्ज़ करके गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। जो इसमें लिखा गया है और ये मैं अफजल साहब का नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इसको देख रहा हूँ बस एक बात कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम सहाबा से अफजल मानता हूँ। तो ये एक मौजू हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा से अफजल, एक मौजू। और दूसरा मौजू ये है कि जनाब अमीर मुआविया के मुताल्लिक़ उलमाए अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो कफ़े लिसान है। ठीक है, ये मौजू बन गया। तो क्या आप में से कोई साहिब इस मौजू पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं कि हाँ अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि हज़रत अमीर मुआविया के बारे में तवक़्क़ुफ़ किया जाएगा, कफ़े लिसान, ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। आप में से कोई इसका दावेदार है कि अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है, या आप में से कोई इसका दावेदार है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के एतबार से तमाम सहाबा से अफजल। अगर आप में से किसी का ये मौक़िफ़ नहीं है तो हमको इसमें बहस करने की ज़रूरत क्या है? और अगर है आप में से किसी का ये मौक़िफ़ है, चलिए मैं किसी एक की बात नहीं करता हूँ, किसी का अगर मौक़िफ़ है तो उसका अपना मौक़िफ़ होगा। एक बात मैं अर्ज़ करूँगा, ये जमहूरी मुल्क है, न जाने कैसे कैसे अक़ीदे और नज़रिए के लोग हैं, किसका कौन मुँह पकड़ सकता है, किसकी ज़बान कौन रोक सकता है। आपका जो भी मौक़िफ़ हो, कोई आदमी, आप अपना मौक़िफ़ अपनाइए, सवालो जवाब हर एक से उससे होगा। लेकिन अपने मौक़िफ़ को
अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बनाकर कौम के सामने पेश करेंगे, तो अगर उसमें कहीं खराबी होगी तो उलमाए अहले सुन्नत तो उस पर कुछ न कुछ ज़रूर बात करेंगे। तो आप में से किसी का अकीदा हो इस पर, तो हमको उससे लड़ना नहीं है, वो क्या कर रहा है उसका अपना मामला है। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी, हर एक को जवाब देना है। अगर आप में से किसी साहिब का ये मौक़िफ़ है और वो कह रहे हैं कि नहीं अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है, नहीं समझता है कि हज़रत अली तमाम सहाबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर से भी अफ़ज़ल, अगर किसी का आप लोगों से ये मौक़िफ़ है और इस पर वो बहस करना चाहता हो, उसका अपना मौक़िफ़ वो रखे। हम कौन टटोलने जाते हैं किसी का दिल या किसी का दिमाग कि क्या कह रहा है, वो किस अक़ीदे का है। लेकिन अगर वो इस पर बहस करने के लिए तैयार है कि नहीं यही मौक़िफ़ है अहले सुन्नत का, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो अहले सुन्नत का सही मौक़िफ़ है उसको उलमा बयान करते हैं। और दूसरा जो मौक़िफ़ हज़रत अमीर मुआविया के बारे में कि कफ़े लिसान है, अगर आप में से ये किसी का मौक़िफ़ हो और उस पर वो बहस करना चाहता है तो फिर उस पर गुफ्तगू होगी। और अगर दोनों मौजू पर बहस नहीं करनी है तो आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम सदर होने की हैसियत से जितने हम हुजूर वक़ार मिल्लत के मुरीद बैठे, जो अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो नुमाइंदा है, ना कि आपने सज्जादा नसीब कहा, और प्रशासन को भी ये कॉपी है कोई ना जेबा अल्फाज किसी के लिए नहीं कहा जाए। तो आप पहले ये बात को लगाना चाहिए था, बस नाज़िबा सज्जादा नशीन कहना चाहिए, आप नाज़िबा आपने इल्ज़ाम लगाया नाज़िबा कलमा का, पहले तौबा कीजिए। किसी मोमिन के लिए नाज़िबा का तौबा कराइए उनसे। अजीर साहब कहा है कोई मैंने नाज़िबा कलमा आपको रुजू कीजिए, बात खत्म कीजिए। आपको सज्जादा नशीन साहब सज्जादा के अल्फाज के साथ देखिए एक बात मुझे अजीर साहब सुन लीजिए। जब आदमी गुफ्तगू करता है, गुफ्तगू करने में हर लक़ब, हर वस्फ़, हर खूबी का तस्करा करना ये हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी नहीं होता है, चूँकि ये मौका क्या है जो उन्होंने कहा है। हज़रत इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी, ठीक है, कि कौन सज्जादा नशीन है कौन नहीं है, वो हज़रत उन्होंने कहा वो नहीं कोई गुफ्तगू, मैं उनको मना कर दी, मैंने उन पर रोक लगा दी, ठीक है। यहाँ पर बात जो है बेकार में तूल पकड़ रही है, और यहाँ पे कोई दावेदार नहीं है, जैसे मौलाना अलीमी साहब फरमा रहे थे कि आप लोग किस मौक़िफ़ के दावेदार हैं। दावेदार नहीं हैं कि हम इस मौक़िफ़ के हामी हैं। मुनाजरा जो है वो हक़ खोजने के लिए होता है, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको अहले सुन्नत हम अक़ीदा ही जानता हूँ कि समझ गया कोई भी मसला हो किसी भी तरह का नीचा दिखाना ये किसी की नीयत नहीं है, इधर वाले हों या उधर वाले हों। मैं आप लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ कि नीचा दिखाने के लिए नहीं आए आप लोग। बस जो भी हक़ के बारे में फैसला करना है तो वो ये जो भी मौक़िफ़ हम लोग डिसाइड करेंगे। अब चूँकि यहाँ की कमेटी वालों ने खर्चा भी किया है, जो भी है, मैं एक खादिम होने की हैसियत से, और मुझे मालूम है कि उलमा इकराम का भी वक्त का तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमसे जो भी खिदमत हो सकती है, आप लोगों का जो भी खर्चा हुआ है, मैं दावत देता हूँ आप तमाम हज़रात को कि इन मवाक़िफ़ पर आप तशरीफ़ लाएँ खानक़ाह बरकातिया में। आज ये चीज़ें मेरे सामने चले हैं तो मैं आप लोगों को दावत सुखन देता हूँ, चैलेंज नहीं देता हूँ, दावत सुखन दे रहा हूँ इस पूरे पैनल को कि आप तशरीफ़ लाएँ खानक़ाह बरकातिया, वहाँ पे बैठकर एक मरतबा इन दोनों मवाक़िफ़ के सिलसिले में, जैसे कि मौलाना शहजाद साहब फरमा रहे थे, जैसे कि मौलाना अलीमी साहब फरमा रहे थे, बैठ के मुदल्लल तौर पर जो है हम लोग गुफ्तगू कर लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और ये मुनाजरा जो भी है जिसको आप